Assalamu alaikum. I think we are live. Uh, this is Plan 9 Lockdown Sessions. Today we are going to have a special discussion with our esteemed panelists. Our panelists include Dr. Faisal. Dr. Faisal is amongst the very few brave souls that really had a very stable job and they were teaching different universities of an academia. And then he started his own venture and currently he is CEO Scaled. For those of you who don't know, Scaled is a company that actually manufacture person carrying aircrafts within Pakistan. Welcome, sir. Welcome to the session, please. Next, we have Dr. Tausif Tokir. Other than spending his day as the Dean of Faculty and Engineering at ITU, he has developed something known as the IMEL Lab. And the lab works with defense, with industry, with various public sectors. Recently, he did something with WASA. Uh, it won't be wrong to say that Dr. Tausif is one of the people who have actually founded the industry and academia linkages as far as technology is concerned. Thank you, sir, for giving us your precious time. Very much. Uh, Very much. and last but not the least, we have Dr. Usman Ilyas. He's currently working as a professor in the Jeddah University. Dr. Safkan has consulted loads of technology startups. He holds patents, HTC product grants. But he's distinguishedly recognized for his work in social networking and using technology for social networks, basically. I thank you all for coming. Uh, Thank you very much. and all the startups and all the entrepreneurs who are actually currently listening to us right now. If you have any questions to the esteemed panelists, please post in with on the Facebook comments. We'll ask them as we go on the way. So basically, we'll start the session with a question. And the reason basically for conducting this session is that we have so many applications pouring in as we run an incubator. And anybody who is basically doing anything like importing anything from China, like even dog food, and selling it online, they call themselves as a technology startups. And we also have startups who actually are working on something as complex that they have installed hardware in retail stores, and with psychedelics they have done to artificial intelligence, and they use that for revenue generation of startups. अब हम इन दोनों startups को technology startups ही कहते हैं. So starting with Dr. Faisal, where do we draw the line? What do you think are core technology companies and how they can be differentiated? Well, from my side, in fact, the way that I see the world, technological companies are very different. In fact, they are basically dependent on core technologies. In fact, very different from online selling. In fact, or doing simple businesses like trading. Uh, in my point of view, in Pakistan, we do not have many specialized technological businesses. In fact, there are very few. To be really true, up to my knowledge, there are about only 16 businesses in Pakistan in total that are, in fact, that can be categorized as technological startups. In fact, um, and normally technological startups take decades to establish, to run, because you have to have technology transfer where you, if you do not know the knowledge, you have to get that knowledge from somewhere, and somebody has to be willing to share that knowledge with you. So well, if, if broadly you call everything as technological startups, yes, definitely they may be technological startups because they're using the technologies developed by somebody else and utilizing them. But in my point of view, a true technological startup, it would be a startup that would be working uh, in fields where technically that have not been attempted before within Pakistan. Uh, there is like one of the startups, I would like to quote one of the startups recently. Please, sir. I've witnessed a company, Maxton, that has come up. In fact, they're moving their base from here to USA very soon because they went into manufacturing of intelligent weapons, and nobody in Pakistan, in fact, wanted them to be here. They couldn't even get through with some of the basic permissions that they needed because the basic legal infrastructure which is needed to host such a company in Pakistan, it does not exist. So unfortunately, because they did not have the back of the government, they have now finally decided to move out of Pakistan, and their venture capitalists, in fact, the people who had funded them, the angel investor, in fact, he wanted them to be there in USA so that they do not get into those legislative hiccups
that they were stuck here in Pakistan with. Okay. So जी sir. So in my point of view, sir, टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, हार्डकोर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करने चाहिए, ठीक। एंड हमारे यहाँ जितना भी काम हो रहा है, जो स्टार्टअप्स मैं देख रहा हूँ, वो बेसिकली किसी ना किसी तरीके से ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक? या Absolutely. फिर बाहर से ला के कोई टेक्नोलॉजी जो है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं और उसको उसी को जो है मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, बट कुछ लोग मैनिपुलेटिवली उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं और इनकैश करने की कोशिश कर रहे होते हैं. Sir, I'm really sorry if I've hurt anybody's feelings. I just wanted to be. Absolutely not. Absolutely not. You, I rather spoke from the heart. मतलब ये बाकी लोग भी यही कहना चाहते हैं basically. Dr. Seep, same question to you, sir. Where do we draw the line कि कोई startup technological है, अगर कोई ऐप पे खाना बेच रहा है या क्या कर रहा है, उसको हम technology startup कहेंगे sir? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इस पे हमेशा मेरी डिबेट इवन मुख्तलिफ स्टार्टअप्स के साथ होती रहती है, बिकॉज वंस दे कम टू मी एंड दे स्टार्ट दे वांट टू हैव अ स्टार्टअप. अब स्टार्टअप में एक लाइक शॉपकीपर है, एक वेजिटेबल मार्केट में फ्रूट सेलर है, एक ठेले वाला है, एंड दे आर यूजिंग सम टेक्नोलॉजी टू सेल देयर स्वीट कॉर्न्स. ठीक है, it's a technology that they're making their sweet corns even better for the people to have a good taste. अच्छा, अब यहाँ पे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना आता है, जहाँ पे ना हर बंदे की डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है. टेक्नोलॉजी का जो वर्ड है वो फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी वेरी करता है. लेट्स से एक लोअर कम्युनिटी में एक चीज़ बहुत हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो चीज़ होगी, वो हो सकता है एक अदर एप्लीकेशन में बहुत ही एलिमेंटल सी टेक्नोलॉजी हो. सो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस कि भाई टेक्नोलॉजी कौन सी है कौन सी नहीं है. जो मेरा एंगल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लेट्स से वंस यू बाय द थिंग्स फ्रॉम AliExpress and get it into your shop and you start selling those things online, that is, in my point of view, is not technology kind of a startup. It's more like you're having a shop which you're selling the things online. That is a separate model. टेक्नोलॉजी के अंदर जहाँ पे मैं जिस चीज़ को लाइन, अगेन एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट डेफिनेशन, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग. देयर इज नो वन डेफिनेशन दैट इज ट्रू. फॉर मी द टेक्नोलॉजी इज समथिंग दैट यू आर bringing some innovation in the things by either integrating them, by defining an application, integrating the things into something new, a new product. Like you integrate 3 different products, integrate them together, make a new system, make a good application note with it, make a customer. So for instance, if I talk about automation, so automation is a huge market, but if you're just selling the IoT components on its own, it will not give you any technology platform. For a platform to be stable enough, you need to have a complete system. The ecosystem is very important. You cannot just have one component out of it and you say, yeah, I'm selling the technology. So if you, I just take an example of IoT, let's say there is a storage problem, security problem, bandwidth of the internet problem. You are going to see the optimum cost price in the field where they are robust enough, the temperature tolerances, so many things that you, once you look into, and then you drill down to the right set of tools and electronics, and then you integrate them and give them a new shape. So something innovation, where the innovation is coming up, then you can say yes, the technology, technological startup is there. For me, innovation and creativity are the key elements to have some technological startup. Again, AliExpress is doing wonders, but they're just selling the things. But how they're selling the things is way more important than what they're selling the things. So their platform and their way they are selling the things, the model is so rich that it is like growing automatically. Uber ab dekh lein, ab Cream dekh lein. So the model is very innovative, and that is the technological aspect that I related to them. Yes, that those kind of startups are the kind of a technological startup. However, again, every person has a different view and might have a different opinion. So I think for us, the view of the respected panelist is the important first. अच्छा, Dr. Usman साहब, sir, what do you think? Where do you draw the line? कि कौन सा startup technology में आ जाता है, कौन सा नहीं आता sir? So for me, actually, I learned this lesson from someone about 20 years ago when I was still a grad student during a startup competition, and the person who taught me this lesson, this distinction between what makes a startup, a tech startup, and what doesn't, was Dr. Akram Chaudhary. He had his own startup which he sold for
couple of $100 million in the US few decades ago. So, and for me, the distinction is this: what makes a business 100% a tech startup is scalability. If I want to make twice as much money, do I have to put in twice as much money? Or is it possible for me to invest a little or put in a little extra, or maybe almost nothing, and make 10 times as much with the investment I made for 1x of my sales? And I'll give you a simple example for that. Software. Software is the ultimate tech startup, tech business. Why? Because you write your code once and you can sell it over and over again. Now, when you go out and buy a copy of Microsoft Office, it costs you how much these days? Costs you about, let's say, $100, $100. Okay. $100. Now, every time you buy, or anyone buys a copy of Microsoft Office, they get it on a DVD or on a USB. But that USB did not cost $100 to manufacture, right? That USB costs $1 or $2. So the product was made once and can be sold over and over again for almost no extra investment. Yes, they have to buy the USB or the DVD or what the media, but that is not what they're charging. So, so to me, and let me give you an example of the extreme opposite end. At the extreme opposite end is manufacturing. Let's say we have somebody who makes shoes, okay? The kind of business that you just mentioned. Very nice shoes. Now, to make 10 shoes in a day, you need X number of workers. But if you want to make 100 shoes a day, you'll need 10 times as many workers. The same people that you have will not be able to churn out 10 times as much product. So in order to increase your sales 10 times, you have to increase your input roughly that many times. That is not a tech startup. And let me give you a practical example from that shows where the difference between, where the line between a tech startup and a not a tech startup is. You may have heard of Etsy. It's a website, Etsy.com. It is called the Amazon of handicrafts. It's very popular in the US because people have gotten very tired of buying stuff from IKEA. You walk into homes that have bought from IKEA and you recognize everything. Okay, so people want something a little more personalized, more unique. Now, for such things, for such handicrafts, there's this website called Etsy. Now, Etsy does not make anything by itself. It is only a marketplace. It is only a platform where people sitting at home who are capable of making beautiful handicrafts, handmade things, unique things, can come and sell their things. Now, in this scenario, the sellers on Etsy may be selling online and they have a greater reach. They can sell all over the world, but they're not tech startups because to make N times of their product, they need to put in N times as much effort and money. But Etsy, the online platform that is serving as the marketplace, can handle 100,000 sellers, can perhaps just as easily handle 1 million sellers or 10 million sellers. So Etsy, in this case, is an example of a tech startup. The people buying and selling over there are not. And of course, okay, this is not a hard line. Of course, there will be companies that will fall somewhere on the spectrum in between there. But to me, that is the distinction between a tech startup and a startup, a small business. Okay. Okay. Now we have established that what differentiates an ordinary business from a startup, basically. We have another question. As Dr. Faisal recently mentioned, that the startup he was talking about, the Maximus people, they shifted to the US. All the startups and all the technology founders I've talked to personally, all of them, they have an opinion, what we call scene कोई नहीं है technological startups का Pakistan में.
So they say either the market is too down, either the legal system is too dumb to get it. There are no more protocols, there is no investments, things and to linger on basically. So what is your opinion, Dr. Seif? We'll start with you. Sir, आपको क्या लगता है, सीन है पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी अच्छा, स्टार्टअप्स में या नहीं है सर? असल में ये है कि पाकिस्तान में ना देखिए इसमें हम इसमें दो तीन चीज़ों में देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर के अंदर. अच्छा, अब पाकिस्तान में जो साइकी है ना, लाइक 99% लोगों की, वो ये है कि दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन सॉफ्टवेयर, दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट more than 100 rupees maybe in buying a software. They know that the software, so there are no such rules and regulations that bind the IP of the software. There are no rights of the software. Plagiarism is very much there. The point is this, that the fabric of rules and regulations is one thing, the platform is another thing. Then for instance, so I will give you an example. I need a good software. Let's say if I want to have a good software and I would like to have a good for my new startup. As I'm having a new startup, I would like to have a software for my firm. Let's say the payroll, HR, or something like that. Then I am completely lost. Like I have to find out or I will have to run from pillar to post. Either they are huge uh, um, um, licenses associated to it, but there are no local expertise available that they're having mature product, or if they are there, the visibility of such products are not are never there. Whenever I'm searching it on the net, I cannot find a good product that is made in Pakistan and that is a good software. Even we are selling our software by the brands which are not made in Pakistan. Somehow we are shy of saying it that it is made in Pakistan, even though the codes are made in Pakistan, but they are branded from some other Or territory. somewhere else? So, yeah, from somewhere else, and somehow this is bringing more money to them. So मैं ये कहूँगा कि जो सॉफ्टवेयर की मार्केट का जो इकोसिस्टम है in Pakistan, that has not been established yet. Although we are exporting a lot of software, although a lot of software companies are working by giving consultancy abroad, by exporting the software solutions abroad, but in Pakistan the real clients are very less. Or the real clients in Pakistan में they are not very well using those products that are locally made. So yes, I do believe that technology का software के angle से एक जो लुक एंड फील और जो एक है ना कि कस्टमर की कॉन्फिडेंस भी, इवन कस्टमर सपोर्ट का एलिमेंट जो है, वो चीज़ पाकिस्तान में इनफैक्ट वीक है. यही चीज़ हम किसी और एंगल से प्लेटफॉर्म से हम लॉन्च करते हैं तो दीज थिंग्स गेट्स वेरी प्रोफेशनल, और हम लोग ही होते हैं तो हम अपने ही लोगों को एट टाइम्स इजी ले जाते हैं. तो आई थिंक देयर इज अ room of improvement. First of all, having said that, there is by no means I'm saying that पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है. टैलेंट बहुत ज़्यादा है, टैलेंट का कोई इशू नहीं है. It is the platform which we are lagging. There is no, the platforms are not strong enough to give enough boost to the new startups, to help out the new startups. फिर जो new startups होते हैं ना, उनको भी समझ नहीं आती, because if the investment is made on them, then there is always a return of investment policy. They are not willing to get into a long-term relationship. Like they would like to see success in a year or two. They're too much like कि भाई सक्सेस 1 ईयर में आ जाए, 2 ईयर में आ जाए. और उसकी स्केलेबिलिटी पे जैसे डॉक्टर उस्मान ने बड़ा अच्छा वर्ड किया यूज, स्केलेबिलिटी का. They never believe in scalability. They believe in one or two products will just click and they will earn money in a way. I think sales after just support after sales, that is a After key sales element which is services. which that is missing in Pakistan. Once they sell the product, they think that this the product is sold for good. No, then the real challenge starts, where they have to improve their product by taking a continuous feedback from the customer. So this is a bit like, again, it varies from market to market. Again, software side is one aspect. However, if I look at automation has a good scope. People are doing good in automation because we cannot afford to have teams from abroad to Pakistan. So the local expertise are being used for the automation in the industry. So that from that aspect, there is some good visibility of automation in the industry. So Okay. again, it depends from the industry to industry of which we are talking of. Okay, Dr. Usman, same question to you, sir. कोई सीन है पाकिस्तान में टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स का, इको टेक्नोलॉजी? मेरा ख्याल है डेफिनेटली एक काम अगर आपने करना है तो वो पाकिस्तान में ज़्यादा मुश्किल से होगा, और वो आप लेट्स से आप यूएस में आप रीलोकेट कर लेते हैं, वो काम आप आसानी से कर सकते हैं.
और फॉर मेनी ऑफ द सेम रीजन जो कि अभी डॉक्टर तौसीफ ने बताई हैं कि वो लीगल फ्रेमवर्क्स एटसेट्रा। एक हमारे लोकल स्टार्टअप्स के लिए बहरहाल एक ये चैलेंज है कि आपकी मार्केट का साइज इन टर्म्स ऑफ आप अपनी जीडीपी देख लें, लोगों की इनकम कितनी है, तो फिर देख लें कि उस इनकम में से अगर आप लोगों को कुछ सर्विस या प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं तो हाउ डिफिकल्ट विल इट बी। वो उनकी आप इतनी उनकी और बेसिक ज़रूरियात हैं जो इतने लोगों की पूरी नहीं हो रही, आप उनसे पैसा निकलवा रहे हैं फॉर समथिंग एल्स, तो इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज नो डाउट। उसमें एक डेटा पॉइंट आप देख लें कि लोग आपके पास मंथली सेल फोन के बिल के लिए एवरेज स्पेंडिंग क्या है आपके पास, और वो मेरी बात हो रही थी, टेलको का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन इट्स अराउंड 120-150 रुपीज़। ये आपके जो ना एवरेज बिल, एवरेज पैसा है जो कि एक बंदा अपने सेल फोन के कनेक्शन पे स्पेंड करता है इन अ मंथ, ठीक है। और इसको ज़रा कन्वर्ट करें, क्योंकि इनपुट्स एक्सपेंसेस ऑन एवरीथिंग आपकी वो एक ग्लोबलाइज ही होती जा रही है, चीज़ों की कीमतें इनपुट्स की वो ज़्यादा फर्क नहीं, मैन पावर के अलावा ज़्यादा फर्क नहीं है अक्रॉस द ग्लोब। तो बेसिकली सेइंग कि लोग $1 भी नहीं खर्च करते हैं अपने सेल फोन कनेक्शन पे इन अ मंथ। अब इस किस्म की सोसाइटी में जहाँ ये आपके इनकम लेवल हो, वहाँ आप कुछ भी बेचने की कोशिश करें, यू विल हैव अ हार्ड टाइम, ठीक है। अगर आपने फॉरेन मार्केट के लिए, आपने यूएस मार्केट के लिए फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हो, अगर आपने उधर बेचना है तो उसमें फिर वही मसला होता है कि कस्टमर लेते हुए वो चेक करता है यार कंपनी है किधर की, और वो जब वो पाकिस्तान का नाम आता है ना, इट्स हैंड्स ऑफ, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी लोकल स्टार्टअप्स वो रजिस्टर जो है ना वो यूएस में हुई होती है। इट मेक्स सेंस, सॉरी, लेकिन हाँ, things are much more difficult over setting up, running a successful startup over in Pakistan, but the odds are against you. और डॉक्टर फैसल जैसे लोग जो कि ये काम कर रहे हैं, मतलब मेरा आपको सलाम, ठीक है ना, क्योंकि it's a hard thing to do. एक और आखिरी चीज जो डॉक्टर तौसीफ ने बात की थी, टैलेंट की अवेलेबिलिटी की। HEC की एक विजन 2025 रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने 2025 तक की जो है ना यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर्स की प्रोजेक्शन दी हुई है कि आपके पास कितने लोग जो है ना यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। आपको पता है इस साल का क्या फिगर है, अगले एकेडमिक ईयर का, और गेस करना चाहेंगे? 220 मिलियन प्लस की आपकी आबादी है, इसमें से कितने लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं एट एनी लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल? इस साल का जो फिगर है, इट इज प्रोजेक्टेड एट अ लिटिल ओवर 4.5 मिलियन, ठीक है। दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग, और उसमें वो इंग्लिश पढ़ने वाला भी होगा, उर्दू में मास्टर्स करने वाला भी होगा, सब है इसमें, BA करने वाले भी हैं, सब है इसके अंदर। इतने छोटे पूल में से आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर स्लैश साइंटिस्ट आपको कितने मिलेंगे, और उसमें से कितने इस काबिल होंगे कि आप उनको हायर कर सकें? तो मेरे ख्याल में तो टैलेंट स्लैश मैन पावर की भी एक प्रॉब्लम है हमारे पास। your concerns are also noted. डॉक्टर फैसल सर, आपसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता ये बात कि वाकई पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स का कोई सीन है या नहीं है, कंसिडरिंग आल्सो द फैक्ट कि आई नो फॉर अ फैक्ट कि आपके जितने क्लाइंट्स भी हैं वो भी पाकिस्तान से बाहर हैं, आप उनको बाहर ही अपने प्रोडक्ट्स बना के बेचते हैं। अच्छा प्यारे भाई, मेरे ख्याल में ना मैं थोड़ा सा चीज़ों को बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, और प्लीज सर, आई एम रियली सॉरी मैं अगर कोई चीज़ गलत बोल रहा हूँ। आप लोग सर्टनली एक यूनिवर्सिटी के साथ हैं, एंड हर बंदा जो है वो अपने इदारे के बारे में कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता, बट मैं आई हैव टू बी ट्रू, राइट? इफ आई एम हियर आई हैव टू बी वेरी ट्रू अबाउट प्लीज सर, कि क्या चीज़ें हैं, क्या फैक्टर्स हैं और कैसे हैं। नंबर 1, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारे पास कितना टैलेंट है, मेरे ख्याल में हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं। हमारे पास जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो बहुत सारे दूसरे मुल्कों के लोगों से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं
कंपैरेटिवली, जब भी हम उनको कंपेयर करते हैं। अगर हम डायरेक्ट कंपैरिजन में जाते हैं इंटेलिजेंस के, तो हमारे जो इंडो पाक के लोग हैं, परसेंटेज वाइज दे आर सीन एज एटलीस्ट 23% more intelligent than general public available in any one country, in fact. So पहली बात तो ये कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। दूसरी चीज़ मैं एग्री करूँगा तौसीफ साहब से भी एंड उस्मान साहब से भी कि यस, जो चीज़ें शुरू होती हैं, जो स्टार्टअप्स यहाँ पाकिस्तान के अंदर शुरू होते हैं, उनमें ज़्यादातर स्टार्टअप्स जो हैं वो बहुत छोटी छोटी बॉटलनेक्स की वजह से जो है वो या तो सर्वाइव नहीं कर पाते या उनको यहाँ से बाहर माइग्रेट करना पड़ता है। वो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो, क्योंकि जितने स्टार्टअप्स आते हैं वो वन आफ्टर अनदर आते हैं और सब एक जगह मिलकर काम नहीं कर रहे होते। हर कोई देखता है कि यार मैं यहाँ फंस रहा हूँ और वो बाहर मूव कर जाता है बजाय इसके कि वो रिटेलिएट करे सिस्टम के खिलाफ। सो होता ये है कि सब बाहर जाते जा रहे हैं और सिस्टम वैसे का वैसे ही खड़ा है, जिसमें जो बेसिक करेक्शंस पुट इन होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। देन राइट, सो ये इकोसिस्टम जो है जिसको हम इस टाइम पे देख रहे हैं, इसको हम बेहतर कर सकते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम गवर्नमेंट को अप्रोच करें, उनको बताएं भाई ये चीज़ें पैचअप होने वाली हैं, खुदा का वास्ता इनको पैचअप करो, नहीं तो तुम लोगों की यहाँ की ग्रोथ अफेक्ट हो रही है। सो पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है, मेरे पास इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यू देता रहता हूँ जब मैंने एम्प्लॉइज़ रखने हों। सो देखने को ये आता है कि जो यूनिवर्सिटी से बच्चा निकला होता है ना, उसको बेचारे को बहुत अच्छे ख्वाब दिखाए गए होते हैं कि भाई तू निकलेगा, तू पहले दिन जाके बहुत अच्छी सीट के ऊपर बैठ जाएगा और तेरे पास तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है। एंड इनफैक्ट होता ये है कि यस, उसके पास नॉलेज होता है, बट वो उस इंडस्ट्री में जहाँ पे वो आके काम करने की कोशिश कर रहा होता है, उस इंडस्ट्री के लिए वैलिड नॉलेज नहीं होता। सो पहली बात तो ये है कि जो करिकुलम्स हैं इस टाइम के ऊपर, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं, दे नीड्स टू बी चैनलाइज्ड सो दैट कि जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं वो पहले दिन आके इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकें। अच्छा, हमारे पास जितने बच्चे आते हैं वो माशाल्लाह थ्योरेटिकली तो प्रॉबेबली आप उनसे जितनी मर्जी देर डिस्कशन करते रहें वो आपको शायद इधर से उधर नहीं होने देंगे, बट जब आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नॉलेज के ऊपर आते हैं तो वो आराम से पीछे हो जाते हैं कि सर मैंने तो ये यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा था। अब जहाँ तक सॉफ्टवेयर का ताल्लुक है, सर मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट उस्मान साहब एंड तौसीफ साहब ने बिल्कुल सही कहा कि टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर में भी हो सकते हैं। ट्रू, सॉफ्टवेयर जहाँ तक मार्केट का ताल्लुक है, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए चीज़ें बनाएं, आप बाहर के लिए भी बना सकते हैं। वेरी ट्रू, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सॉफ्टवेयर के यूजर्स अवेलेबल हैं। एंड अगर आपने कोई एक अच्छी चीज़, कोई एक नया अनोखा सॉफ्टवेयर बनाया हो जिस जो कि मार्केट की ज़रूरत हो, तो वो बिकेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम लोग आमतौर पे जो सॉफ्टवेयर देख रहे होते हैं वो सादे सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक यार अच्छा मैं एक वर्ड प्रोसेसर और बना लेता हूँ। वर्ड प्रोसेसर तो दुनिया में बेशुमार हैं, आपका कोई वर्ड प्रोसेसर क्यों इस्तेमाल करेगा? इट हैज़ टू बी आइदर टू गुड, ठीक, कि वो सारे फीचर्स रखता हो जो कि बाकियों में नहीं है, या फिर इट इज़ गोइंग टू फ्लॉप आउट। तो सर्टनली इस तरह के स्टार्टअप्स नॉर्मली दे फ्लॉप आउट। बट से एक बंदा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ईरान का एक स्टार्टअप है, उन्होंने कारपेट इंडस्ट्री के लिए कारपेट वीविंग सॉफ्टवेयर बनाने शुरू किए। एंड बिलीव मी, पूरी दुनिया में चाहे ईरान कितना भी बदनाम हो, सॉफ्टवेयर अगर कारपेट इंडस्ट्री को चाहिए तो वो उसी एक कंपनी के पास जा रहे होते हैं, बिकॉज दे नो यस दे हैव द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक, सो पहली बात तो ये है कि आप किस टॉपिक को उठाते हैं, ठीक, काम करने के लिए बहुत मैटर करता है। ठीक, उसके लिए थॉरो रिसर्च आपको मार्केट में करनी चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ पे होल्स हैं और उनको हम फिल कैसे कर सकते हैं। अगर तो आप इस अप्रोच के ऊपर चलेंगे, यस यू विल बी सक्सेसफुल रिगार्डलेस ऑफ के आप कहीं पे भी हैं। जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि पाकिस्तानी पैसे खर्च नहीं करते सॉफ्टवेयर के लिए, तो प्यारे भाई ये बहुत सही बात है, आई ट्रूली एग्री टू दैट। ठीक, बट इसकी हरगिज ये वजह नहीं है कि हम करना नहीं चाहते। इनफैक्ट हमें मालूम नहीं है कि अगर हम पैसे खर्च करेंगे तो हमें उसके क्या फायदे होंगे। हमने जब से आंख खोली है हमने पायरेटेड सॉफ्टवेयर देखा है। ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। ठीक, इस तरह से कि एक तो हमारे हर बच्चे को हर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना आता है। ठीक, आप उसे कहें यार अच्छा तूने एडोब फोटोशॉप के ऊपर काम करना है, वो कहा हाँ बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। आप उसे कहें यार कोरल ड्रॉ के अंदर ये चीज बना के ले आनी, सर अभी आई। ठीक, चाहे वर्ड प्रोसेसिंग हो चाहे कुछ भी हो, बच्चे जो हैं दे हैव एक्सपोजर टू ऑल द सॉफ्टवेयर्स दैट वन कैन इमेजिन।
कॉन्ट्ररी, अगर आप बाहर किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं जहां पे आपको जो है हर चीज खरीदनी पड़ती है, मेनी पीपल आर नॉट इवन अवेयर कि एडोब फोटोशॉप है क्या, एडोब प्रीमियर है क्या, ठीक, या उनके सॉफ्टवेयर होते क्या है, बिकॉज उनके प्राइस टैग इतने बड़े हैं कि आप उनको ना खरीद सकते हैं ना इस्तेमाल कर सकते हैं. सो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. हमारा एक्सपोजर विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर हैज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ दिस थिंग, राइट. हाँ, हमें उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए था, इस एक्सपोजर को यूटिलाइज करना चाहिए था और इनकैश करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया, ठीक. और मेरे ख्याल में अभी भी वक्त है, हमने इसमें बहुत ज्यादा कुछ लूज नहीं किया. हम इस चीज को, इसको एज एन एडवांटेज देख सकते हैं, उठा सकते हैं और काम कर सकते हैं. इंडियंस ने जो है चंद साल पहले यही शुरू किया था कि वो चैनलाइज करना शुरू कर दिया था उन्होंने, कि एक प्रॉपर फुल ब्लोन चैनल्स बिल्डअप हुए थे जिसके अंदर दे डिफाइन कि क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए, एंड उसमें जितनी मैन पावर थी उसको लगा दिया गया है. एंड स्लोली स्टेडली उन्होंने, आप देखें बाहर सॉफ्टवेयर की दुनिया में किसी भी एक बड़ी कंपनी को उठा के देख लें, हर दूसरा बंदा आपको इंडियन मिलता है. So yes, they've actually achieved what in fact we should have also achieved. ठीक, अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो हैं वो अपने साइड के ऊपर है, हमारी अपनी मजबूरियां थी, हम उनकी तरफ ध्यान जरा ज्यादा रहा और हम प्रॉपरली चीज़ों को चैनलाइज नहीं कर सके. बट स्टिल नॉट टू लेट, हम अभी भी इसके अंदर आ सकते हैं. एक छोटा सा पॉइंट, आई एम रियली सॉरी मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, मैं एक छोटा सा पॉइंट और जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा. हमारे यहाँ आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने वालों की कमी नहीं है, ठीक, और उन्हीं में आइडियाज़ चोरी करने वालों की भी कमी नहीं है, ठीक. आई गेस देयर इज Beautifully said. there is a dire need to teach ethics at the level of the university कि जनाब क्या चीज़ क्या है, ठीक. I am really sorry, it can be taught at school level, it can be taught at anywhere, because basically ethics and values, they play a very vital role in building up a society, right? And we're badly lacking on with respect to those. And टेक्नोलॉजीज की कमी नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स की कमी नहीं है. मैंने जब ये काम शुरू किया था तो आई हैड अ वेरी मीगर अमाउंट इन फैक्ट, एंड मैं आज तक बगैर किसी इन्वेस्टर के चला जा रहा हूँ. सो अल्हम्दुलिल्लाह. स्टार्टअप्स को थोड़ा सा अगर सब्र करना आता हो, जल्दी का ना हो कि जनाब एक दिन में मैं जो हूँ वो अरबपति बन जाऊंगा, वो टेक के काम करें तो जरूर हर चीज चलती है और हर चीज को अपने वक्त के लिए ग्रोथ चाहिए होती है. बिल्कुल इसी तरह से कि अगर आप एक सीड आज प्लांट कर देते हैं, ठीक, और आप ये एक्सपेक्ट करें कि नहीं मैं सुबह उठूंगा तो ये एक बड़ा दरख्त बना हुआ होगा, ठीक, इट्स एन अनरियलिस्टिक अप्रोच, ठीक. बच्चों को, जो लोग बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं, उनको ये समझाने की जरूरत है कि देखो बेटा, हर चीज का ग्रोथ का टाइम होता है, ठीक. पहले वो सीड में से एक छोटा सा पौधा निकलेगा, आप उसको पानी देंगे, खाद देते रहेंगे, उसका ख्याल रखेंगे कि उसके ऊपर धूप पड़ रही है नहीं पड़ रही है. देन आपको उसके ऊपर एक्चुअली पैसे खर्च करने पड़ते हैं उस छोटे पौधे के ऊपर. वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है और फिर एक जगह आती है कि वो अपने ही वजन से खुद गिर जाता है, ठीक. फिर आप उसको जो है उसके साथ एक डंडा बांधते हैं और वो डंडे को बांध के उस पौधे को और पानी देते हैं और खाद डालते हैं, एंड देन इट ग्रोज इनटू अ ट्री, ठीक. बट इट डजंट ग्रो इनटू अ ट्री in one night or maybe a month or so. It takes years, ठीक. एंड स्टेडी ग्रोथ होती है. जो चीज जितनी जल्दी बढ़ती है उतनी जल्दी खत्म हो जाती है. हम कहते हैं जनाब जो चीज ज्यादा जल्दी बढ़ी है वो एक कैंसर होती है और उसको काट के फेंक देना ज्यादा बेहतर होता है आपके सर्वाइवल के लिए. वेयर एज वी एज ह्यूमंस, हमें बड़े होते हुए टाइम लगता है, ठीक. आप ये क्यों नहीं तवक्को रखते कि जनाब आज बच्चा पैदा हुआ है, कल से ये खुद बाहर जाए और जाके जो है वो पैसे कमा के लेके आए हम अपने लिए और खुद ही अपनी रोजी रोटी कमाए. इनफैक्ट क्योंकि उसे ग्रोथ का टाइम चाहिए होता है, पहले दिन तो वो अपने ही जो उसके अपने मसल्स होते हैं उनके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता. वो तो अपने मुंह के ऊपर अपना ही नाखून मार के अपने आप को जख्मी कर लेता है. बिजनेसेस भी ऐसे ही होते हैं. आप पहले गलतियां करते हैं, बेशुमार गलतियां करते हैं, आपको किसी को पकड़ के चलाने की जरूरत होती है और ये एक्सपेक्ट करना कि आप फौरन उठ के बैठ जाएंगे, ये मुमकिन नहीं होता. इट टेक्स टाइम. आप मैं पौधों की एग्जांपल देता हूं. अगर आप आम के पेड़ को देखें तो 2 से 2.5 साल तो वो बेचारा कोई फल नहीं दे रहा होता आपको, ठीक. बहुत से आमों की नस्लें ऐसी भी हैं जो आपको कई दफा 8-8 साल फल नहीं देती, बट जब फल लगता है तो बड़ा मीठा होता है. सो डिपेंड करता है. हमें पहली बात ये है कि कंसिस्टेंसी चाहिए. वर्ड कंसिस्टेंसी इज द की थिंग, राइट.
मैं माजूर चाहता हूँ, मेरी उर्दू बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप लोगों ने क्योंकि लिखा है कि उर्दू के अंदर ध्यान दिया जाए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उर्दू में इसको बता सकूँ. सो कंसिस्टेंसी इज समथिंग विच इज नीडेड फॉर अ बिजनेस टू सर्वाइव, नंबर 1. नंबर 2, कि हम लोगों को चैनलाइज करनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स, चाहे वो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो इवन सिलेबाइज हैं इन द यूनिवर्सिटीज, सो दैट कि हम एक तरह से सब लोग मिल के एक साइड के ऊपर चल रहे हों, राइट. हमारी आमतौर पे, रियली सॉरी टू से, हम सब लोग जो है ना वो एक ही दीवार को हर तरफ से धक्का लगा रहे हैं, ठीक. और हमारा नेट फैक्टर जो है दैट इज 0. हमें सबको मिल के पहले तो ये डिसाइड करना चाहिए भाई हमने करना क्या है, हमने अचीव क्या चीज करनी है. जैसे कि इंडियंस ने काफी साल पहले जो है वो एक अपने टारगेट्स बना लिए थे कि हमने ये चीज अचीव करनी है. हमें भी लिस्ट आउट कर लेना चाहिए कि हमने क्या कुछ अचीव करना है. अगर हम लिस्ट आउट कर लेंगे, हमें पता होगा कि हमने जाना कहाँ है, तो यस देन उसके लिए रास्ते ढूंढे जा सकते हैं. रस्तों की कमी नहीं, टैलेंट की कमी नहीं. और ये सारी चीजें जिसको आज हम देख रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं यार ये शायद पाकिस्तान में मुमकिन नहीं, यस ये पाकिस्तान में मुमकिन हो सकती हैं. ओके. अच्छा डॉक्टर उस्मान, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क बेसिकली वो इन्हीं क्वेश्चंस इन्हीं आंसर से डराइव है, एंड इट इज अ लिटिल बिट फिलोसॉफिकल. वी सी के पाकिस्तान में पहले डूअर्स की बहुत कमी है, जो लोग काम करना चाहते हैं वो है ही काम ओवरऑल हमारी पॉपुलेशन में एज, और जो हैं भी वो उसका भी एक डिलेमा ये है कि पीपल से स्टैटिस्टिक्स पॉइंट आउट की थी पाकिस्तान में स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बढ़ गई है, तो उसका रिजल्ट सिर्फ यही है कि मतलब टिकटॉकर्स दे आर पोरिंग आउट आउट फ्रॉम द स्काई. अगर रिसर्च ये शो करती है कि देयर इज अ राइज इन वाचिंग द ऑनलाइन कंटेंट ऑफ डिफरेंट ऑनलाइन कंटेंट्स, तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि नेटफ्लिक्स का जो है वो ही मेजर शेयर है, नो यूडेमी एंड नो लिंडा एक्सेट्रा. Now these people who are actual doers, they are potential entrepreneurs for us. How can we change their mindset for a more productive technological use as well? Do you have any ideas? सर आपका माइक म्यूट है गालबन, प्लीज आप चेक करें. सॉरी, हाँ मैं म्यूट कर दिया था. मेरे ख्याल दो सेपरेट चीजें हैं, इनको मैं इनको सेपरेटली इन पे बात कर लेते हैं. एक तो ये फ्रीक्वेंटली डिफरेंट क्वार्टर से ये क्रिटिसिज्म आ रहा होता है कि वो हमारी जो है ना वो सारी इंटरनेट ट्रैफिक जो है ना इतनी एक्सपेंसिव हमने जो बैंडविड्थ ली हुई है एज अ कंट्री, वो जी नेटफ्लिक्स पे लग रही है, यूट्यूब पे लग रही है, तो कौम जो है ना जाया कर रही है जी. फैक्ट इज ये कोई हमारे हम कोई बड़े डिफरेंट नहीं है, ये पूरी दुनिया में ऐसे ही है. आप अभी अगर वो इंटरनेट ट्रैफिक का एनालिसिस करें तो उसमें इसी किस्म की फिगर्स हैं कि थिंक 90% ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक दीज डेज इज वीडियो, ठीक है. और उसमें से ऑफ कोर्स कोर्सेरा, एडेक्स वगैरह ये बहुत कम कंपोनेंट है. इंटरनेट का बहुत बड़ा इस्तेमाल एंटरटेनमेंट है, ठीक है. अब आपके मुल्क के अगर हालात खराब है तो डू नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू चेंज द ह्यूमन नेचर. अगर बाकी दुनिया में 90% इंटरनेट ट्रैफिक नेटफ्लिक्स और यूट्यूब है तो आपके पास भी यही होगी, ठीक है. आपसे आप डिफरेंट नहीं होगा इससे. चाइना में भी यही होगा, आई एम श्योर. वो भी कोई सारे जो है ना बैठे ऑनलाइन कोर्सेज पूरी कॉम नहीं पढ़ रही होती है हर वक्त. दिस इज हाउ इट इज, ठीक है. जहाँ तक वो दूसरी बात है, दूसरा कंपोनेंट है, अच्छा डूअर्स हमारे पास थोड़े से कम है. मेरा ख्याल है ऑफ कोर्स आपको खुद काम करने वाले आपको लोग मिल भी जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल इसमें थोड़ा सा ना हमारा वो एक कल्चरल एस्पेक्ट मैं इसमें लेकर आऊँगा. आप पे 47 से पहले तक अंग्रेज जो है ना आप पे रूल करता रहा है. आपका देखें उस जमाने से लेके अब तक वो जो स्टेटस सिंबल है, स्टेटस सिंबल वाली जो नौकरी होती है वो होती है जिसमें अफसर जो है ना कुर्सी पे बैठा है और पीछे जो है ना वो टॉवल लटका हुआ है उसका, और वो बस पूरा दिन बैठा है, फाइल आती है, साइन करता है. हाथ से काम करना, आई फील दिस इज डीपली इनग्रेन्ड इन आवर कल्चर. हाथ से खुद काम करना जो है ना ये इट्स कंसिडर्ड अ लिटिल बिट समथिंग फॉर प्लेब्स. ये जो है ना ये लेबर वाला काम जो है ना ये जो है ना ये अच्छा नहीं लगता है. ये मेरा ख्याल है दिस इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर.
इसलिए वो खुद वो हाथ से जो है ना वो कोई चीज अटेम्प्ट करना, ट्राई करना, ये इसका रिवाज थोड़ा सा कम है। मतलब इंजीनियर भी जो है ना बहुत, नॉट एवरीवेयर, लेकिन कई कंपनीज में भी, या मे बी हमारे वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये कल्चर है, अच्छा जी 17 ग्रेड इंजीनियर जो है ना आया है तो उसने जॉब पे उसने हाथ से काम नहीं करना है, वो नीचे टेक्नीशियन है, उसको कहेगा तो वो जो है ना कोई काम करेगा हाथ से, इंजीनियर साहब ने नहीं करना है। तो मेरा ख्याल ये दिस मे बी वन ऑफ द फैक्टर्स, देयर मे बी समथिंग एल्स, लेकिन ये मेरा ख्याल है एक चीज है कि वो खुद ना हाथ से काम करना ना वो हम अपने लिए अच्छा नहीं समझते हैं। इट्स कंसिडर्ड, Okay, got I it. don't have a word for it. Okay, got the explanations. Dr. Sasif, would you like to respond to the question? How do you think of it? Sir, आपका भी Dr. माइक Tasif. म्यूट है, कहीं अनम्यूट कर दें. Yeah. Okay. Basically, I second Dr. Usman's comment first of all, क्योंकि जो एक कल्चर है ना हमारा, वो एक्चुअली ड्राइव करता है नेशंस को. जो हमारी नेशन की एज अ नेशन स्टैंडिंग होती है, जो हमारा जीडीपी होता है, वो बेसिकली रिफ्लेक्शन होती है ऑफ आवर, एक जो दूध वाले से लेके जो एक टॉप मोस्ट सीईओ तक के जो उसके बैक एथिक्स हैं, उसके जो कल्चर हैं, द वे ही इज ड्राइविंग इन सोसाइटी, द वे ही इज पासिंग हिज आवर्स. आई विल जस्ट शेयर अ सर्वे विद यू. रिसेंटली मुझे इत्तेफाक हुआ कि मुझे शौक हुआ कि मैं अपनी एक छोटी सी टीम मैंने रखी हुई है, मैं उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर करूँ कि आइदर दे आर डूइंग द वर्क और नॉट, और दे आर प्रोडक्टिव और नॉट, जैसे हमने बात किया ना, एफिशिएंट हैं कि नहीं, एंड सो ऑन. सो आई हैव स्टार्टेड टू से देम, ओके योर कॉन्ट्रैक्ट इज 40 आवर्स अ वीक, ठीक है, आई डोंट एक्सपेक्ट एनी अदर थिंग फ्रॉम यू, जस्ट गिव मी दोज 40 hours and make sure that those 40 hours are given to me. And I have given them a small software to install in their computer, कि जब भी वो काम कर रहे हो, just turn on this software which will monitor their desktop activity, and once they're off with their work they can close that client. क्योंकि कंप्यूटर हमने अपने दिए हुए हैं, तो अगेन कंपनी ओन्ड है, तो वी हैव द लिबर्टी ऑफ आस्किंग देम टू इंस्टॉल दो सॉफ्टवेयर इन द कैन यू बीट इट. देखें, अभी मैं बात ये नहीं कर रहा कि वो कितने एफिशिएंट थे, वो क्या कर रहे थे, वो अपनी सीवीज अपडेट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, या किस तरह की चीज़ों में वो 40 घंटे पूरे कर रहे थे. उनसे 40 घंटे नहीं पूरे हो रहे थे, उनसे 40 घंटे नहीं पूरे होते. कोई इतवार के दिन कंप्यूटर लगा के बैठा हुआ है, उसमें आती है एक्टिविटी लॉग आती थी, जिसमें ये बताता था कि वो कंप्यूटर पे जब लॉगिन हो चुका हुआ है तो वो माउस कीबोर्ड जो हलाता है तो वो कितने मिनट हलाता है घंटे के अंदर. तो किसी की एक्टिविटी 5 मिनट निकलती थी, किसी की 7 मिनट निकलती थी. अच्छा, तो having said that, I would just like to interfere and tell the audience कि सर की जो टीम है, it is one of the most awesome teams that, and they have delivered a lot of projects in different world. ये normal team again, नहीं है. सर ये कह रहे हैं अच्छी टीम के ये हालात हैं. सर आगे बता रहे हैं जी. नहीं, देखिए, मैं ये अच्छी टीम वाली भी बात है या मेरी टीम की बात है, बात की कल्चर की है जो कि सोसाइटी में है और प्रिवेल करता है. इट्स नॉट a person, a team, it's the overall culture that is driving the whole GDP economy of Pakistan I'm talking of. That is the work ethics I'm talking of, ठीक है. That might include you and me as well, ठीक है. I'm not excluding myself, ठीक है. मैं वही बंदा होता हूँ जब बाहर के लॉज में, when I was in UK, I was तो वहाँ पे I know कि 9 बजे हमारा ऑफिस स्टार्ट होता था, 5 बजे बंद. पाकिस्तान में somehow जो बंदा 5 बजे के बाद बैठा हुआ है ना, वो एप्पल आई बन जाता है, वो स्टार बन जाता है. उसको लगता है कि जैसे कंपनी को लगता है कि इससे ज्यादा तो कोई काम नहीं करता, कोई ये नहीं देखता. वो 11 बजे आके आता है, ठीक है, टाइम वेस्ट करता है 3 बजे तक. देन ही इज इन रश ऑफ फिनिशिंग द थिंग्स, ठीक है, अब काम खत्म करना है, बॉस ने पूछना है, फिर वो 4-5 बजे पे हाईली प्रोडक्टिव होने की शो करता है, और फिर रात 7-8 बजे जाके एहसान करता है कंपनी पे कि भाई मैं तो रात लगाई है, अब तो मैं कल लेट आऊंगा, और मैं तो रात को लेट जाता हूँ, काम बहुत है, काम बहुत है. काम भी किया क्या है, एफिशिएंसी सिफर, लिटरली सिफर. तो मैंने वो सॉफ्टवेयर उड़ा दिया. मैंने कहा यार ये तो मेरी टेंशन है, मेरा ब्लड प्रेशर चढ़ रहा है इसे. मैंने सॉफ्टवेयर को उड़ा दिया. मैं कहा आई हैव फुल ट्रस्ट इन ऑल ऑफ यू एंड द थिंग्स विल बी डन, फुल फेथ, ठीक है, द वे. बट अगेन आई कैन नॉट चेंज द डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान ओवरनाइट. ये कल्चर जो है ना, ये फ्रॉम डे वन, फ्रॉम देयर होम स्टार्ट होता है, स्कूल लेवल से स्टार्ट होता है, एथिक्स स्टार्ट होते हैं घर से. तो आई कैन नॉट चेंज, आई एम नॉट अ पर्सन दैट कैन चेंज द होल जनरेशन ऑफ पाकिस्तान. सो मैंने क्या किया, देन आई हैव स्टार्टेड टू मोटिवेट देम, ठीक है. एक तो स्टार्टअप जो है ना, वो न्यू गिटार बन चुका हुआ है. पर गिटार क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इन आवर एज, जब हम लोग होते थे 2001-2002 में, तो जिसका गिटार होता था ना, जो गिटार चलाता था, सारे देखते थे उसको, क्या ये गिटार चलाता हुआ जा रहा है,
क्या चार्मिंग पर्सनालिटी है, एवरीबॉडी इज फॉलोइंग दैट गाय, ठीक है। सर आजकल हमारे का टाइम तक DSLRs आ गए थे, बिल्कुल सर, अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारे टाइम तक DSLR आ गए थे टेंशन सीकर्स। आजकल का जो स्टार्टअप है, आजकल का जो गिटार है ना, वो स्टार्टअप है, वो उसके पास स्टार्टअप है, वो कह रहा है नोबडी केयर्स अबाउट इट, बजाता कैसे है? क्योंकि देखिए जिसको गिटार होता था उसको 3 साल बाद पता लग जाता था कि गिटार कैन नॉट मेक द अर्निंग ऑफ हिज लाइफ। तो वो गिटार फिर स्टोर में पड़ा होता था, वो बंदा एम्प्लॉय बना होता था और तमीज से काम करता था। तो मैं ये कहूँगा कि स्टार्टअप इज एन एक्सीलेंट थिंग। देखिए मैं आई एम नॉट डिस्करेजिंग स्टार्टअप हियर, बट आई एम जस्ट सेइंग दिस थिंग कि वर्ल्ड ओवर more than 70% is the failure rate, and उसमें भी 70% ऐसे लोग होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं, जो कि दुनिया में वाकई कुछ कर सकते थे, अदरवाइज दे आर इन सैलरीड एम्प्लॉयड जॉब, दे माइट बिकम CEO ऑफ अ फर्म, बट वो स्टार्टअप के चक्रों में आके ना अपनी जिंदगी में ब्रेक ना लगाएं, ठीक है। इफ स्टार्टअप इज वर्किंग फॉर यू, एक्सीलेंट, गिव इट अ गो, गिव इट अ ट्राई, बट जिद्दी ना हो जाए कि नहीं मेरा तो स्टार्टअप होगा, या जैसे सर ने बात किया कि मेरा जो पौधा है वो फल देगा, अगर उस पौधे की फल देने की अहलियत नहीं है, वो फूलों पे आके खत्म हो जाता है, वो फल नहीं दे सकता, तो इस बात को भी रियलाइज करना जरूरी है। तो देखें, व्हाइल वी आर टॉकिंग इन दिस पैनल, आई थिंक 3 out of 4 of us are salaried employee. Let's discuss the reality, ठीक है। Yes, I'm having my own startup, I really want to earn through my startup day and night, but that startup is growing, is not having enough juice in it at this stage, at this point in time, so I'm having a solid तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपने कंफ्यूज नहीं करना, बी वेरी हम्बल, बी वेरी पेशेंट, सिंपल एक कागज पकड़े, पेन पकड़े, यू डोंट नीड अ लैपटॉप, यू डोंट नीड अ मोबाइल फोन, डू एंड जस्ट टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड अ पेन एंड थिंक ऑफ वट एवर यूर ट्राइंग टू डू। अगर वो हो जाता है तो क्या होगा, मेक अ बिजनेस मॉडल, एटलीस्ट बिजनेस मॉडल तो बना के देखें जो आप करना चाह रहे हैं, क्या उसमें इतना जूस भी है कि वो आपको सस्टेन कर सकता है कंपनी को 3 साल 5 साल, एंड देन यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इट। एक स्टार्टअप बना लेना, SECP से रजिस्टर कर लेना, प्लान 9 में एंट्री कर लेना, और एक फीलिंग आना शुरू हो जाना कि यस वी आर मेकिंग अ स्टार्टअप। नहीं भाई, ये एक वो स्टेप है, या हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी का साथ जाया कर लें, ठीक है। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर मेंटरशिप, सर ने जैसे कहा ना कि बंदा आपका हाथ पकड़ के लेके चले। स्टार्टअप के अंदर 100 जब आपको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 डालने पड़ती है FBR के अंदर, आधी होशियारी तो वहीं निकल जाती है सारी, और फिर उसके बाद नोटिस एक आया जाए आपकी स्टार्टअप तो वहीं पे खत्म हो गया। अकाउंट्स पूरा एक डील करने का नाम है, उसके कंसल्टेशन करना, मतलब मैं तो इस चीज़ों से गुजरता, तो मैं देख रहा था कि भाई कहाँ पे मैं क्या स्पेक्ट्रम एनालिसिस और 5G कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन लिंक्स बनाता फिर रहता हूँ, एक रसीद नहीं मिल रही होती, उसके ऊपर जलील होकर बैठ जाते हैं, नोटिस आ जाता है FBR का, फिर कर ले जो करना है, कर ले जो करना है, GST आपकी मैच नहीं कर रही। तो ये पूरा इकोसिस्टम है, इट्स नॉट वन एलिमेंट। फॉर मी टेक्नोलॉजी एलिमेंट is just 30% or 40% in a whole startup. 60% is other than your technological skills. It is your managerial skills, how you're managing people, how you're managing the technology, how you're managing uh, and the discipline, the key thing। जब हमने टिकटॉकर्स की बात की ना, they are lacking the discipline, that is the only thing। डिसिप्लिन अगर बंदे के अंदर हो, दे कैन डू वंडर्स। अब जब बंदा होता है ना कि मैं तो CEO हूँ, व्हाई शुड आई बी वर्किंग, एक CEO ऑन एवरेज 18 घंटे काम करता है, अगर उसने स्टार्टअप वाकई सक्सेसफुल करना है, 18 घंटे से काम कर रहा है, 8 घंटे करके घर जा रहा है, वो एक एम्प्लॉय है, सिंपल एम्प्लॉय ऑफ अ फर्म, ही कैन नॉट डू मोर देन दैट। यू हैव टू डू योर स्लीप, eat everything with your startup. Your bread and butter should be your startup. Only then you can make the startup a reality. So startup is not a part-time job. It's a full-time job. Take it very seriously and don't confuse yourself. इसमें success rate कम है मगर rewards बहुत high हैं. So it's a risky path. Be very careful while you're taking it. ओके डॉक्टर फैसल, डॉक्टर तौसीफ ने तो काफी डिस्करेज किया होगा लोगों को जो भी हमारी थॉट्स देख रहे हैं, उनको रियलिटी का एक चेहरा उन्होंने दिखाया है। सर व्हाट आर योर थॉट्स, आपका क्या ख्याल है कि हाउ कैन वी यूज एफिशिएंटली टेक्नोलॉजी एंड व्हाट वी लैक टू एज अ होल इन आवर सोसाइटी सर? सर अगर आप प्लीज दोबारा दोहरा दें अपने सवाल को। आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट लॉस्ट द साउंड फॉर जस्ट अ सेकंड। यस सर, सर टोटल वही बेसिक क्वेश्चन था कि एक तो वैसे ही हमारी सोसाइटी में डूअर्स कम हैं, और जो डूअर्स हैं भी दे मोस्टली यूज नॉन प्रोडक्टिव साइड ऑफ द टेक्नोलॉजी। लाइक स्मार्टफोन पेनिट्रेशन पाकिस्तान में कोई कैलकुलेट करे तो फिर उसका मेजर यूज जो है वो टिकटॉक पे है। कोई अगर ऑनलाइन कंटेंट का मेजर यूज अगर डायसेक्ट करे तो वो मोस्टली नेटफ्लिक्स पे है। कैन देयर बी अ वे दैट वी कैन हैव द मोर प्रोडक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आउट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट आर गिवन टू अस? Number one, sir,
I would agree 101% with उस्मान साहब, ठीक है, कि आप कल्चर को चेंज नहीं कर सकते. यस, ज़्यादातर ये एंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट यूज़ होता है. इट्स अ टूल, राइट. What we lack is we do not teach people how to use the tool, right? The tools are there, right? People try exploring them on their own, and they try exploiting them. Well, in fact, they really do not know the potential of those tools. It's just like कि अगर कोई एक हैमर एग्जिस्ट कर रही है, एंड हम जो है वो, मैं आज पढ़ रहा था कहीं पे अखबार के अंदर लिखा हुआ था कि जी ये टिकटॉक को बंद कर देना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, ठीक. विच इज वेरी गुड. इन फैक्ट हमारे अक्सर औकात लोग जो है वो उठ के मुकदमे फाइल कर देते हैं, एंड उनको पता नहीं होता बेसिस का कि जनाब ये मुकदमा कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ जा रहा है. भाई, अगर एक हथौड़ी से कोई बंदा किसी दूसरे को जो है वो कत्ल कर दे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब अपने मुल्क में सारी हथौड़ियां जो हैं उनको बैन कर दें. ठीक. इसी तरह से सॉफ्टवेयर की जितनी चीजें अवेलेबल है हमारे इर्द गिर्द, ये सारे टूल्स हैं. ठीक. हमें ये सीखना चाहिए कि हमें कौन से टूल को कितना इस्तेमाल करना है, राइट. हम जैसे यूट्यूब मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ. ठीक. मेरे ख्याल में शायद मेरे से ज्यादा यूट्यूब यूज करने वाला कोई नहीं होगा, पर डिपेंड करता है आप किस चीज के लिए यूज करते हैं. मेरी कंपनी के अंदर यूट्यूब जो है वो, जहाँ पे हम कहीं फंसते हैं कि यार ये चीज कैसे होती है, एंड हमारे पास कोई एक ट्यूटोरियल नहीं मिल रहा होता, वी आर द फर्स्ट वंस टू गो टू यूट्यूब एंड ढूंढते हैं कि यार इसके ऊपर पहले कभी किसी ने कुछ काम किया हुआ है. और आमतौर पे होता है कि आपको हजारों लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कि किसी एक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और वो आपको करके दिखा रहे होते हैं कि यार ये चीज ऐसे होती है. सो इट इज अबाउट हाउ यू यूज द टूल. ठीक. हमें वाकई सिर्फ ये सिखाने की जरूरत है लोगों को कि यार टूल्स को इस्तेमाल कैसे करना है, और यार तुम्हारे हक में क्या चीज बेहतर है. तुम इसी टाइम को जाया भी कर सकते हो और इसी टाइम को यूटिलाइज भी कर सकते हो. अगर यूटिलाइज कर रहे हो तो उसके फायदे क्या होंगे, और अगर एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उसको मिस यूज कर रहे हो, तो उसके नुकसान क्या होंगे. ठीक. अगर तो हम ये सिखा दें लोगों को, तो मेरे ख्याल में यही जो बैंडविड्थ हम यूज कर रहे हैं, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरी चीज, जहां तक ताल्लुक है इस चीज का कि डूअर्स बहुत कम है, मेरे ख्याल में ये जुमला जो है ना सर, ये थोड़ा सा गलत है. ठीक. डूअर्स बहुत ज्यादा हैं. अनफॉर्चुनेटली दे डोंट नो व्हाट टू डू. ठीक. दे डू नॉट हैव द एक्सपोजर, ठीक, टू नो कि मैं क्या चीज कैसे करूंगा. हम लोग जितना कुछ पढ़ते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, और जब हम प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर आते हैं तो हमें पता लगता है कि यार ये चीजें तो मुझे पता ही नहीं. एंड आई वुड एग्री विद तौसीफ साहब. ठीक. तौसीफ भाई, आपने वो बात की है जो कि शायद एक बिजनेसमैन के तौर पे मैं बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ समझ सकता हूँ, और उसकी अहमियत को बहुत ज्यादा उसकी कदर करता हूँ. मैं आपके कहे हुए जुमले की, वाकई एफबीआर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम कहीं नहीं पढ़ते. मगर सर, इस तरह तो हम यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ते जो कि हम जिंदगी के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं. हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, इसको रिफॉर्म होने की जरूरत है. ठीक. पहली बात यह है कि हमारे पास मल्टीपल एजुकेशन सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं. एक गरीब का बच्चा बेचारा जो है वो मैट्रिक कर रहा होता है, ठीक है, उसके बाद एफएससी कर रहा होता है, और उस बेचारे ने वो रटा लगा के सब कुछ करना होता है. एंड इफ यू एक्सपेक्ट हिम टू डू समथिंग कि यार ये जो है ना कोई एक बहुत बड़ी चीज बना लेगा, मे बी 1 out of million यस बना लेगा. ठीक. बट अनफॉर्चुनेटली आपका जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपने उसे स्क्रू अप कर दिया हुआ है, और वो बेचारा जो है बहुत सारी चीजों से ऑलरेडी पैदल है. उसको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. एंड मैं कदर करता हूँ उन लोगों की जो कि ये करके भी बहुत आगे आ जाते हैं. ठीक है, बहुत सारों को मैंने देखा है जो आगे आ जाते हैं. फिर दूसरा वो प्रिविलेज सिस्टम है जहां पे आप प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं, और वहां पे जनाब वो कैम्ब्रिज करते हैं, ए लेवल करते हैं, एंड उनकी अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर्स एंड देयर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इज फार बेटर देन द वंस जिनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. एंड शायद वो इसीलिए जो है वो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी चले जाते हैं कि यार मैं तो ये हूं और मैं फलाऊं और फलाऊं. बट इन सारे एजुकेशन सिस्टम में आप ये देखें कि जब हम मास्टर्स करके निकलते हैं या बैचलर्स करके निकलते हैं, हमने कुछ चीज ऐसी नहीं पढ़ी होती जो कि हमें जिंदगी में एक्चुअली यूटिलाइज करनी होती है. आपको हर चौक के ऊपर पुलिस वाला खड़ा मिलता है. ठीक. वो आपको रोक भी लेता है.
आप उसकी मिन्नतें भी करते हैं, भाई मुझे जाने दे यार, ठीक है गलती हो गई, अगली दफा नहीं करूंगा। आपको अपने राइट्स का नहीं पता होता, बिकॉज वी डोंट स्टडी दीज थिंग्स इन इन यूनिवर्सिटी, ठीक। एंड जब आप बाहर आते हैं तो आपको एक धचका लगता है कि यार ये कौन सी दुनिया है, ठीक है, मैंने तो ये चीजें पढ़ी नहीं थी, ठीक। बी एट पुलिस वाले, बी एट बेसिक अकाउंटिंग, ठीक है, हाँ जो लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो जरा यूनिक लोग होते हैं, ठीक। बट हम लोग जो इंजीनियर्स होते हैं, हम लोगों ने तो अकाउंटिंग जैसे कहते हैं ना कि ना होने के बराबर देखी होती है, एंड हमें उसका बिल्कुल कुछ नहीं पता होता। एंड स्पेशली कि ये जो हमने हर साल एफबीआर के फॉर्म्स भरने होते हैं और जमा कराने होते हैं, इनकम टैक्स हो गए, सेल्स टैक्स हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज हो गई, ये हमें ना पता होता है, ना हमें ये पता होता है कि हमने इनको इस्तेमाल कैसे करना है। बाहर से कोई एक चीज मंगवानी हो तो आपको एजेंट्स इस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं कि वो 10 रुपए की चीज होती है, पता लगता है कि आपने 900 रुपए उसको इंपोर्ट करके के ऊपर जो है ना खर्च कर दिए, और वो आपको जलील भी उतना करते हैं, बिकॉज यू डोंट नो कि एक्चुअली तरीका क्या है। सो पहली बात तो ये कि भाई हमें अपने एजुकेशन सिस्टम्स को रिफॉर्म करने की जरूरत है, अगर हम इन सारी चीजों को बेहतर देखना चाहते हैं। हाँ, जिस एनवायरनमेंट में हम ऑलरेडी रह रहे हैं, और अगर हम इसको नहीं चेंज करना चाहते, या हम समझते हैं कि हम बहुत थोड़े हैं और हमारी चीखों पुकार के ऊपर हुकूमत जो है वो चीजें तब्दील नहीं करेगी, और हमने इसी एनवायरनमेंट के अंदर रहना है, तो यस देन हम अपने अपॉर्चुनिटीज को बहुत ज्यादा कम करते जा रहे हैं, ठीक। मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम बचपन में सुना करते थे कि दो सेल्समैन जो थे, उनका शिप जो था वो एक जगह डूब गया, और दोनों जो थे वो तैरते तैरते एक आइलैंड पे पहुंचे। तो दोनों जूतों के कारोबार से ताल्लुक रखते थे, तो दोनों ने वहां पे देखा कि वहां किसी ने भी जूते नहीं पहने हुए। एक ने अपनी कंपनी को वापस लिखा कि सर यहाँ कोई जूते नहीं पहनता, मैं वापस आ रहा हूँ, यहाँ पे हमारा कोई स्कोप नहीं है। और दूसरे ने कहा कि सर पहले ही 4-5 कंटेनर भिजवा दें, बिकॉज यहाँ पे कोई जूते नहीं पहनता और यहाँ तो सब कोई पहनेगा। सो जहां तक ताल्लुक है इस चीज का कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी कितनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वेल इनॉर्मस इनॉर्मस, आप सोच नहीं सकते। यहाँ पाकिस्तान में कोई भी चीज प्रॉपरली अभी तक कंप्यूटराइज हुई नहीं है, और जो हुई है वो बेचारे अभी तक लोग भुगत रहे हैं। कई दफा पता लगता है कि जी एक क्वेरी से ही नहीं चली थी तो प्लॉट किसी का किसी और के नाम के ऊपर चला गया, ठीक। एंड ये रिसेंटली अगर आप लोगों ने अखबारों में देखा हो तो ये एलडीए का एक मसला चल रहा था जो उन्होंने डिजिटाइज किए रिकॉर्ड्स को। सो इस तरह से पहली बात तो ये है कि यस देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, ठीक। अगर आप ईआरपीस को देख लें, आप जर्नल ऑटोमेशन को देख लें, कि जहाँ अगर आप बिजनेस ऑटोमेशन को देख लें, बहुत ज्यादा स्कोप है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को देख लें, बहुत 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 ज्यादा स्कोप है। अभी भी जो बहुत ज्यादा हमारे पास यहाँ पे इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि वो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रही हैं जो कि बाहर डिस्कार्ड हो जाता है, वो हम यहाँ पे सेकेंड हैंड इंपोर्ट करते हैं और उनको हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो हमारे पास इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म्स तो मैन्युफैक्चरिंग के हैं ही नहीं, ठीक। हाँ, अगर हम यहाँ पाकिस्तान के अंदर उनको प्रोड्यूस करने की कोशिश करें, या हम प्रोड्यूस नहीं करते, हम इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं कि चलो पुरानी इक्विपमेंट के ऊपर कुछ चीजें लग जाएं जो कि उसको थोड़ा सा मॉडर्न कर दें, तो वेल वो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। वी कैन सर्टनली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, वी कैन सर्टनली यूटिलाइज मैन पावर इन अ बेटर वे, और हर बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, हर कोई कुछ ना कुछ कमा सकेगा। हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए इस चीज के ऊपर कि हम अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं, सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं, तो हम उनको स्किल सेट सिखाएं, हम उनको वो जर्नल कॉन्सेप्ट सिखाएं जिसके ऊपर प्रोग्रामिंग बेस करती है। मैंने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया, पता ये लगता है कि सर मैंने तो जावा पढ़ी थी सर अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, और मुझे तो जावा ही आती है। अगर आप उससे पूछें कि यार फॉर का लूप किस चीज के लिए यूज होता था, rather than replying कि यार ये सर इटरेशन के लिए यूज होता है, वेल वो उनका जवाब ही होता है कि सर हाँ पढ़ा था, वो सर ने बताया था, ये 5 दफा चलता है, ठीक। सो इनफैक्ट अगर हमने वो कॉन्सेप्ट्स जो है उनको क्लियर नहीं कर रहे तो सर्टनली वो उस नॉलेज को यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स हमारे बच्चों के पास कितने क्लियर हैं। सर्टनली जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे वो उनकी इंप्लीमेंटेशंस बेहतर से बेहतर होती जाएंगी बच्चों के, एंड देन दे कैन यूज देयर ओन ब्रेन्स, दे कैन वंडर अबाउट विद थिंग्स दैट जो कि उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ। और ज्यादातर वो चीजें होती हैं आपने जिंदगी में करनी होती हैं जो कि आपने नहीं पढ़ी होती, तो वो उसमें जरा बेहतर रहेंगे।
ITU के बच्चे बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर है बाकी यूनिवर्सिटियों से। मेरे ख्याल में इनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, राइट? सिर्फ एक सही रास्ता दिखाने की बात है। मैं किसी भी तरह से डिस्करेज नहीं करना चाहूँगा, ये हमारी अगली नस्ल है। हम आहिस्ता आहिस्ता सारे बूढ़े होते जा रहे हैं और किसी न किसी एक दिन हम लोग भी इस दुनिया से चले जाएंगे, और ये वही नस्ल है जिसने हमारे काम को आगे आके देखना है। तो हमें इस चीज को बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे बच्चे किस काबिल हम उनको बना रहे हैं, ठीक? हम उनको क्या टूल्स किस तरह से इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं। ये वो वक्त है जब हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि यार तुमने यूट्यूब किस तरह इस्तेमाल करनी है, ठीक? इट इज वेरी सिंपल। हम ये जहरी बात है, हम ये कह के साइड पे हो सकते हैं कि भाई सब लोग ऐसे ही करते हैं तो ये भी ऐसे ही करेंगे। वेल ठीक है, मेरे बच्चे अगर मैं उनको थोड़ा सा बेहतर कर सकता हूँ तो मे बी सिर्फ उन्हीं के लिए वो बेहतर होगा। मैं जिन तक मेरी आवाज जा सकती है, जो मुझे सुन सकते हैं, जिनको मैं कायल कर सकता हूँ इस चीज के ऊपर कि यार नहीं ये तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है, ये चीज बेहतर है, शायद मैं उनको दुरुस्त कर सकूं। बट मुझे कोशिश जरूर करनी चाहिए, ठीक? मुझे कोशिश जरूर करनी चाहिए। जब तक हम लोग कोशिश नहीं करेंगे ये चीजें दुरुस्त नहीं होंगी, ठीक? इसी मुल्क में हम सब लोगों ने रहना है, इसी के साथ जीना है, और हम बड़े आराम से ये कह के बरी जुमा नहीं हो सकते कि नहीं जी यहाँ पे तो एनवायरनमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। सो हम सबको मिल के काम करने की जरूरत है कि हम एनवायरनमेंट को बेहतर करें, और हुकूमत को और उन लोगों को जो कि हमारे लिए पॉलिसीज बिल्ड करते हैं। हमें बड़े मजे की बात है, 1992 के अंदर मैंने एक ऐसे बंदे को आईटी की पॉलिसीज बिल्ड करते देखा था जो एमए इस्लामियात था। सो अगर यही रुझान रहा तो माशाल्लाह हमारी पॉलिसीज बहुत अच्छी रहेंगी। आई रियली डोंट नो, मैं सॉफ्टवेयर के से काफी सालों से जो है वो थोड़ा सा हट गया हूँ, मैं हार्डकोर टेक्नोलॉजीज के अंदर चला गया हूँ। सो मेरा एक्सपोजर इतना नहीं है उस बारे में, बट हाँ ट्रू पोटेंशियल नजर आता है, ठीक? एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास इतना पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। हमें सिर्फ चैनलाइज करने की जरूरत है, मे बी कि हम इंटरनेशनल मार्केट्स को capitalize कर सकें। इनफैक्ट not capitalize is not the right word in fact, but we can monetize it and in a number of approach ways. them basically. Approach them and monetize them in a number of ways. I hope मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया होगा। Absolutely, sir. Acha, so now we are having a lot of questions on Facebook. Now the decorum of the program is going to change. I'm going to ask one question each of the panelists, and they are going to answer, inshallah. So starting with, there is a very tough question, Dr. Zasif. Sir, question basically ये है कि as in Pakistan we have the pandemic itself, and in Pakistan we have, in our country we have Pakistan Engineering Council, Higher Education Commission, Pakistan Medical Association, Pharma Association. We have technology groups, research groups, and associations. But we have not, but we are honest, we are copying every other country like rest of the world. So why are we not able to come up with our own single tech solution in any form? Sir. सर म्यूट है आपका माइक। Right. Okay. So I think आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो पेंडेमिक में है ना, सबकी असलियत और सबकी सलाहियत और अहलियत और उसकी कैपेसिटी जो है ना खुल के सामने आ गई है। एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इवन लाइक अगर कोई से भी कंट्री आप देखें, उसके हालात देखें, इफ यू टॉक ऑफ यूएस, इफ यू टॉक ऑफ यूके, इफ यू टॉक ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, सरप्राइजिंगली पाकिस्तान इज डूइंग गुड टू बी ऑनेस्ट once you look into the percentage of deaths and you know, I don't know now that there are theories behind. अल्लाह ताला बस सबको सेफ रखे। मैं किसी थ्योरी में नहीं जाना चाह रहा, मैं किसी में नहीं जाना चाह रहा कि क्या चीज़ है चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही है। But again, the bottom line is this pandemic has given you an opportunity to do reflection. You have a good time to think, sit back, relax, and think what you are actually doing every day. Please, sitting at home is not wasting your time. If even you're spending time with your children, each single moment is worth it. This time will never come back again in your life. Your children are with you, your family is with you, or you're doing reflection, sitting alone in a room and thinking of what you really need to do. So this time
is kind of a, I won't be saying that it's a blessing, but if you look at पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो $12 बिलियन देने थे, वो आगे चले गए, अगले साल चले गए. काफी सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के लिए तो सिचुएशन कोई इस तरह से नहीं है जैसे शायद For the rest of the world. वर्ल्ड है. पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो नेगेटिव में चली गई हैं. आई डोंट नो व्हाट एल्स इज हैपनिंग आउट देयर, बट अगेन मैं उसमें भी नहीं जाता. मैं इसमें जाता हूँ कि देखिए ये वो टाइम है जहाँ पे आप बैठ के थोड़ा सा सोचें कि व्हाट यू रियली नीड टू डू विद योर लाइफ. ठीक है, you have good time to yourself. Software tools are available to you. मैंने जो इस टाइम पीरियड में किया है, I have learned new softwares. They you always consider yourself as a student. Once you think that you are master of something, that is the end of the day that you are going to become anything beyond that. ठीक है, तो you always think about you being a student. और मैंने Amazon AWS को कभी देखा, कभी Azure को देखा, कभी सर्टिफिकेशन को देखा, कभी हार्डवेयर सिक्योरिटी को देखना शुरू कर दिया. अगेन ये चीज़ें सारी जो लर्निंग है, AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ऑटोमेशन हो गया, दुनिया भर में जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं, आपके पास ये बड़ा अच्छा टाइम मिला है. व्हेन यू हैव इंटरनेट इन योर हैंड, नोबडी इज डिस्टर्बिंग यू, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड मच, the salary is coming to you, you just sit and think what you really want to do with your life. I think this is very important. So I think this time period again, I wish इस तरह से time period ना ही आए, क्योंकि जिस तरह से एक पैनिक तरीके से आया हुआ around the world. But at the same time ये time कभी आपके पास मुड़ के वापस नहीं आएगा. When that you are sitting at home and you are encouraged to sit at home and you can think of what should be done. तो please इस time को सही तरह से utilize करें. Nothing stops you from making PCBs designs. Nothing stops you from making LabVIEW codes. Nothing stops you from making websites. Whatever you really want to do, you can do it very easily. And every online, if you want to learn anything, all the things are available for free on internet. मतलब कि आप just type it on internet, you will find the relevant documentation, videos, and whatever. The main thing is you need to have a plan. The dangerous thing is that you don't have a plan. Even if you are having a wrong plan, अगर आपके पास कोई गलत plan भी है, ठीक है, that is still way better than having no plan. ठीक है, प्लीज बैठें, सोचें क्या करना है, किस तरह से लाइफ के साथ चलना है, क्या आपके काउंट्स होंगे. जैसे सर ने एक बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर फैसल ने, ऑल्दो एट ITU वी आर आल्सो गिविंग एम्फेसिस टू दिस, बट हमारे भी हैंड्स थोड़े से टाइट होते हैं. We have accreditation bodies. We have to justify the number of credit hours taught as engineering and soft skills and all those things. because हम contents को continuously revise कर रहे हैं. ये जो feedback मुझे मिल रहा है, जब मेरे डीन थे, जब मैं अपने ज़माने में था, वो इतने इस तरह की चीज़ों के बारे में ना सोचते थे ना बात करते थे. They are more centered for the research that is more theoretical or might not have much impact on society. तो हम पाकिस्तान की एजुकेशन के अंदर अगर बात करें तो कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जो कि हमारी लोकल नीड्स को मीट करे, जो कि हमारी लोकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे. और तो मसला ये कि हमारी जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, लोकल नीड्स हैं, वो टेक्नोलॉजिकली 30 years बैक है. और उस तरह के पेपर्स कहीं पब्लिश नहीं होते कि आप एक ऐसा काम पे मसला हल करें जो 30 साल पुराना था. लेट्स सपोज फाइनेंस इंडस्ट्री का मसला करते हैं, आप एक क्या नाम है स्पून फैक्ट्री का करते हैं, आप एक कटलरी शॉप का करते हैं, कटलरी मैन्युफैक्चरर का करते हैं. वो आउटडेटेड टेक्निक्स पहले से यूज़ कर रहे हैं, सीना बसीना उनकी टेक्निक्स हैं. उसमें आप जो मर्जी इम्प्रूवमेंट लेके आ जाएं, दैट इज नॉट पब्लिशेबल, एंड विदाउट पब्लिकेशंस द फैकल्टी मेंबर्स कैन नॉट गेट प्रमोशंस. तो ये एक इकोसिस्टम ऐसा बन चुका हुआ है कि विच वी एक्चुअली हम फॉलो किसी और वर्ल्ड के नॉर्म्स करते हैं और इम्प्लीमेंट भी यहाँ पे आके करते हैं. व्हेन आवर रियलिटी इज अ बिट डिफरेंट, हमें रियलाइज करने की ज़रूरत है कि हमारी लोकल नीड्स क्या हैं. मेरे पे अगर स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लगाती है पैसा, तो और मैं पाकिस्तान के मसले हल नहीं करता और दुनिया भर के मसले हल करता फिर रहा हूँ, तो आई थिंक देयर इज समथिंग आई एम डूइंग रॉन्ग. आई नीड टू justify those scholarships, those fundings that are spent on me, and I should be doing uh, something more tangible for the society I'm living in, rather कि मैं हर वक्त ग्लोबलाइजेशन और वेस्ट और ईस्ट के मसले हल करता रहूँ. अगेन ये डॉक्टर फैसल साहब की ना एक बड़ी अच्छी बात है जो बड़ी अच्छी उन्होंने हाईलाइट भी की है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में गैप्स डेफिनेटली हैं, और ये जो हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ है ना, ये समहाउ एजुकेशन में नहीं पढ़ाई जाती या सही तरह से इसमें इम्पार्ट नहीं की जाती. मोस्टली टेक्स्ट बुक फॉलो कर ली जाती है जो कि पाकिस्तान की रियलिटीज़ के साथ
रेजोनेट नहीं करती, एंड वंस अ पर्सन गो इन द रियलिटी इन द रियल फील्ड, उसको बहुत बड़ा शॉक लगता है. तो अगेन वी आर ट्राइंग इन ITU एज वेल, वी आर आल्सो encouraging अदर फैकल्टी मेंबर्स एज वेल टू चेंज द सिचुएशन. अपने कोर्सेज में जब भी वो पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को पहले ये कहें कि ये समझाएं कि वो क्यों पढ़ रहे हैं. ये एक क्वेश्चन है ना, जब बच्चा पूछता था कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको लोग समझते हैं कि फॉरबिडन क्वेश्चन है, और बास फैकल्टी मेंबर्स बड़ा माइंड कर जाते हैं कि ये स्टूडेंट की क्या मजाल हुई कि उसने ये पूछा कि ये पढ़ क्यों रहे हैं. तो मैं तो अपने स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि अभी नहीं कन्विंस ना कि हमें क्यों पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक वो हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए. तो पहले हम ये कन्विंस होंगे कि यस वी रियली नीड टू स्टडी दिस, बिकॉज दिस इज द सिनेरियो दैट वी कैन डील विद, दिस काइंड ऑफ एजुकेशन विल हेल्प अस. फिर वी शुड स्टार्ट इम्पार्टिंग दैट नॉलेज. और फिर बच्चा जो है ना वो बड़े ईगरनेस उसकी आती है, बड़े वो उसको खुद जस्तजू होती है कि वो खुद सीखे और देखे कि तो जो भी आप कुछ कर रहे हैं उसके पहले देख लें कि साको सबाक उसका हासिल वसूल उसका अफादियत क्या है, फिर उस चीज़ को दिल लगा के आप करें भी और उसके अंदर कम्प्लीटली इन्वॉल्व भी हों. डॉक्टर उस्मान सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज आल्सो रिलेटेड टू पेंडेमिक. पेंडेमिक में बेसिकली वो पूछना ये चाह रहे हैं सर, एज द पेंडेमिक हिट अस तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई हैं लोगों के लिए इन पाकिस्तान में लोगों ने PPE सूट्स भी बनाए हैं, अपने सैनिटाइजर भी बना के बेचे हैं, वेंटिलेटर की नोजल्स भी मैन्युफैक्चर हो रही हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. कुछ स्टार्टअप्स इवन सो मच सो फेस डिटेक्शन पे भी काम करें कि इमेज प्रोसेसिंग से पता लग जाए कि पर्सन इज इफेक्टेड फ्रॉम कोरोना और नॉट. The question basically is if in the times of pandemic somebody is working in technology, in which area he or she should work? सर पेंडेमिक जो है ना वो अभी आई हुई है, मे बी इट लास्ट अनदर 6 months, मे बी अनदर 1 year, ठीक है, और एंड देन इट मे बी अनदर 50 years, अनदर 100 years. तो जिसके बाद फिर दोबारा कोई जैसे स्पेनिश फ्लू आया था 100 साल पहले आया था, अब दोबारा हमें मुसीबत पड़ी हुई है. तो मेरा ख्याल इसके पीछे हमें अपनी वो shouldn't necessarily change what we're doing. हाँ, मुझे इसमें ये जरूर अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि मैं आज ही बल्कि देख रहा था किसी न्यूयॉर्क टाइम्स में शायद आया था कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स जो इन फेस टू फेस कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हैं आर गोइंग अवे. क्योंकि इस पेंडेमिक ने एक चीज सिखा दी है कि भाई आपने अगर कुछ सीखना है, कोई आपको ट्रेनिंग की जरूरत है ना, मीटिंग की जरूरत है, मच ऑफ दैट कैन बी डन ऑनलाइन. ठीक है, तो मेरा ख्याल है स्टार्टअप्स के लिए, टेक स्टार्टअप्स के लिए खास तौर पे जो कि जिसको हम कहते हैं वो नॉलेज इकोनॉमी साइड पे जो काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनके लिए ये एक हम 10-15 साल से कहते तो आ रहे हैं कि जी वो इंटरनेट कनेक्शन हो, स्काइप हो, तो जी आप घर से काम कर लो. मेरा ख्याल है इस पेंडेमिक ने ये कम से कम बहुत सारे बिजनेसेस को, वाइट कॉलर बिजनेसेस को ये चीज ये ट्राई आउट करने पे फोर्स कर दिया. और मेरा ख्याल है काफी सारों ने डिस्कवर किया होगा कि हाँ यार ये जो ना, मे बी नॉट द एंटायर कंपनी, लेकिन ये मे बी दिस डिपार्टमेंट, मे बी दैट डिपार्टमेंट, ये जो है ना हमारे सारे काम ये तो जो है ना रिमोटली भी हो सकते हैं एंड वी डूइंग फाइन. और जिससे मतलब वो ज़ाहिर वो बिजनेसेस अपनी कुछ कॉस्ट रिड्यूस कर सकती हैं, अपने ऑफिस स्पेस रिड्यूस कर सकते हैं. मेरा ख्याल ये इसमें मुझे एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है जरूर. इसके अलावा एक मैं अगर ये जो अभी आपने डॉक्टर तौसीफ से जो क्वेश्चन पूछा था ना, इसके जवाब में मेरे एक जवाब आ रहा था मेरे ज़हन में. प्लीज सर, प्लीज. अभी तक हमने कोई बड़ी कोई टेक्निकल इनोवेशन क्यों नहीं, बड़ा कोई टेक स्टार्टअप, सक्सेसफुल टेक स्टार्टअप क्यों नहीं पाकिस्तान से निकला है. अगेन नंबर्स, आई लाइक नंबर्स. ठीक है, आप जरा अपनी आबादी देखें, 220 मिलियन, यूएस की आबादी देखें 360 मिलियन, ऑन द सेम ऑर्डर, नॉट द सेम बट ऑन द सेम ऑर्डर, क्लोज. ठीक है ना, और उधर स्टार्टअप्स देखें, अपने पास देखें, ठीक है, बहुत फर्क है. लेकिन फिर साथ ये इट्स नॉट कि इधर बिल्कुल कोई टेक स्टार्टअप नहीं निकला है. मैं इसमें रीसेंट एग्जांपल एक एग्जांपल जमीन की देना चाहता हूँ. ठीक है, वो दैट्स काइंड ऑफ अ बिग गुड स्टोरी. करीम की जो एक्विजिशन हुई है बाय उबर, कुछ उसमें आपका भी, कुछ पाकिस्तान का भी कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन आप गिन सकते हैं अगर आप चाहें. तो
there are a few successes happening now. It takes time. जैसे कि डॉक्टर फैसल कह रहे थे, ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती है. वो क्या कहते हैं, ओवरनाइट सक्सेस टेक्स 10 years. ठीक है ना, वो टाइम लगता है कुछ चीजों को मैच्योर होते, कहीं पहुंचते. तो हमारे पास क्यों, मतलब ये एक दो सिर्फ क्यों हमारे पास स्टोरीज हैं, व्हाई नो फेसबुक, व्हाई नो गूगल. तो फिर अगेन सीधी बात ये है कि एवरी स्टार्टअप इज अ तुक्का. ठीक है ना, आपने कितनी अटेम्प्ट्स की हैं आपने मुल्क में बैठे. अगेन आपका सिंगल डिजिट्स में मेरा ख्याल है आपकी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, 5%, 3% इस तरह की आपकी आबादी जो ना वो यूनिवर्सिटी से पढ़ती है. इन्हीं में से ही प्रॉब्ली कोई ना कोई टेक स्टार्टअप स्टार्ट करने के काबिल होगा. तो आपकी वो 95-97% आबादी तो उधर साइड पे होगी. वो एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ही उस तरह कोई नहीं थी मेजॉरिटी के लिए. हाँ, एक चीज जो हम में है, मेरा ख्याल समझता हूँ, वो ये कि दो चीजें होती हैं. एक, यू नीड टू हैव द स्किल. दूसरी चीज ये, यू नीड टू हैव एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट. अगेन ये भी मेरा ख्याल है उसमें कल्चर टू कल्चर वेरी करता है. जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके जो ईस्ट एशियन कल्चर्स हैं, साउथ कोरिया, जापान साइड पे, उधर का कल्चर में थोड़ा सा उधर टाइम गुजारा हुआ है. उधर काफी डिफरेंट कल्चर है एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में जहाँ बात आती है. फेलियर इज अ बिग स्टिग्मा ओवर देयर. यानी कि लेट्स से डॉक्टर तौसीफ जो ना अपना स्टार्टअप पाकिस्तान में शुरू किया हुआ है, ट्राई करते हैं, इट सक्सीड्स, ग्रेट. इफ इट डजंट सक्सीड, कोई बात नहीं, नेक्स्ट, ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. मतलब हमारा इधर ये इस किस्म का कल्चर है. यू ट्राई थिंग्स, यू सक्सीड, गुड. इफ यू डोंट, यू ट्राई आउट समथिंग एल्स. ये बहुत अच्छी बात है. वो जो मैं जिन मुल्कों का नाम ले रहा हूँ, उधर कल्चर ये थोड़ा सा डिफरेंट है. यू ट्राई योर हैंड एट अ स्टार्टअप, एंड इफ यू फेल, तो आप खानदान में उधर जो ना बदनाम हो जाते हैं, यार यू आर अ फेलियर, यू आर लुक्ड अपॉन एज अ फेलियर. ये हमारे पास स्टिग्मा उस तरह नहीं एग्जिस्ट करता है, विच इज अ गुड थिंग. ठीक है, तो मेरा ख्याल वो आप ट्रैफिक में कभी आप जाकर कभी बस में अगर बैठे हो, वो अंडे बेचने वाला वो बच्चा सर्दियों में आ रहा होगा, गर्मियों में जाएंगे तो वो ठंडा पानी पिलाने वाला. मतलब people try things, people do things. ये अच्छी बात. These are not tech startups, but they're business. People are trying. People are willing to try. This is one part of it. दूसरा पार्ट, जैसा कि मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी ही आपके पास, या ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है बहुत लोगों को. और मेरा ख्याल है जब आपकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इतनी कम होंगी, तो फिर आपकी नंबर ऑफ सक्सेसेस भी प्रोपोर्शनेटली उतनी ही कम होंगी. एक और चीज, हम अपना कई बार वो कंपैरिजन इंडिया के साथ कर रहे होते हैं कि शायद जो बहुत ज्यादा काबिल मैन पावर है हमसे. तो मैंने पिछले साल ना मैंने देखा था कि अपनी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज, एक वो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है, QS रैंकिंग. मैंने देखा था पहले 500 में कितने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं. ठीक है, तो नाम तो बहुत है टेक में इंडिया का वर्ल्ड वाइड. तो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज पिछले साल 3 थी. मेरे पास नाम भी मेरे पास शायद अभी पड़े हों शायद. तो आपके पास आपकी 3 यूनिवर्सिटी थी, नस्ट थी, कॉमसेट्स थी, UT लाहौर थी पिछले साल. अब शायद इस साल कोई ऐड होगी. 3. इंडिया इज बाय पॉपुलेशन 7 times बिगर देन अस. तो व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट कि कम से कम कितनी यूनिवर्सिटीज होंगी इंडियन इसी लिस्ट के अंदर? इसी रेशियो से 21 बनती है. इसी 21, कम से कम 21 होंगी. और जितनी मतलब उनकी वो वाह है वर्ल्ड वाइड, एक्चुअली एक्सपेक्ट कि 21 से काफी ज्यादा ही हो. तो गेस करना चाहते हैं एक्चुअली कितनी थी पिछले साल, कितनी इंडियन यूनिवर्सिटीज इसी कैटेगरी में फॉल करती थी? 10. तो पर कैपिटा अगर आप देखें, तो अगर आप क्वालिटी ट्रेनिंग की अगर आप बात करें, तो काइंड ऑफ एक्चुअली लिटिल बिट अहेड आई वुड से. द मार्जिन इज स्मॉल, लेकिन ये कि जितनी आपकी आबादी है उस हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटीज सीम टू बी डूइंग ओके इन दैट रैंकिंग एटलीस्ट. तो
बात वही है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात है. आप नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स आप बढ़ाएं. More people will try their hand at startups. More people might become successful. ठीक है. तो नंबर गेम है मेरा ख्याल है. number of attempts, आपने जो honest attempts करनी है वो ज्यादा होनी चाहिए. That would increase the probability of your success as a whole. बिल्कुल. आप तुक्के मार रहे हो, जितने तुक्के मारोगे उसमें से उतने ज्यादा लगने का चांस भी होगा. जी. Dr. Faisal, sir, we have another question. The question is basically the question is in two parts by two different people, but we would try to sum up and make it a one question. Sir, question basically ये कि how important it is for us entrepreneur, if he is not a technical person, to understand the technology, and if they must, how can they best understand the technology they're working on? What is the best approach? जी sir. पहली बात तो ये कि जो भी काम आप करना चाहते हैं उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपको ये समझ नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या, आप उसको सर्टनली कभी भी प्रॉपरली उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते कि जिसमें आप उसको प्रोड्यूस कर सकें या आप उसके ऊपर कोई काम कर सकें. So it is very important that you understand what you're doing, right? What you want to do. It really doesn't matter कि आपने उसको पहले पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ. कोई भी बंदा जो है वो हर चीज़ पढ़ के जो है वो दुनिया में नहीं आता, और हर चीज़ हम यहीं आके पढ़ते हैं. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं या कॉलेजेस में या स्कूल्स में पढ़ते हैं. और एक स्किल जो हम बहुत ज़्यादा लैक करते हैं वो ये करते हैं कि हमारी पढ़ाई हमेशा वहाँ आके ख़त्म हो जाती है जहाँ हमें टीचर नहीं मिलता. अनफॉर्चुनेटली हमें ये कोशिश करनी चाहिए, दिस इज़ अनफॉर्चुनेट इन फैक्ट, हमें कोशिश करनी चाहिए, सॉरी मैं दोनों को अलग कर रहा हूँ, जुमला ज़रा गलत हो गया, बट हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इंडिपेंडेंटली चीज़ों को पढ़ें, समझें और नॉलेज को अडेप्ट करें और नॉलेज को यूटिलाइज करना सीखें, राइट? अगर आप इंडिपेंडेंटली पढ़ के समझ के उसको इस्तेमाल करना सीख सकते हैं नॉलेज को, तो देन ये एक बहुत बड़ा स्किल है. ये इन इटसेल्फ बहुत बड़ा स्किल है. बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में आपको सिखाया जाता है कि आप इंडिपेंडेंटली रिसर्च कैसे कंडक्ट करेंगे. उसमें आई मीन रिसर्च वर्क इज एन आर्ट दैट यू नीड टू learn. In fact, it enables you to work alone, right? Find different things and then put them together and build something new. हमारे पास पाकिस्तान में जो है वो बच्चे आमतौर पे कोशिश करते हैं कि यार मुझे कहीं दाखिला मिल जाए, मैं ये चीज़ पढ़ लूँ और फिर मैं इसको करूँगा. सो हर चीज़ के लिए तो आपको दाखिला नहीं मिलता. फीसद चीज़ें वो होती हैं जिन पे हम जब काम करना शुरू कर रहे होते हैं तो हमें पता लगता है कि यार इसमें तो प्रायर नॉलेज नहीं है. इसको वहाँ छोड़ नहीं देना चाहिए कि जनाब हमारे पास प्रायर नॉलेज नहीं है. आपको वो चीज़ पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, एंड देन उसके लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़े करने चाहिए, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़े करने चाहिए जिसमें प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस एंड आपके मैन पावर, उसकी रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ें आप सेटल आउट कर सकते हैं. ठीक. ये भी कहना सही नहीं है कि जी मैं तो सिर्फ मैंने तो एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ा था और मैं सॉफ्टवेयर नहीं लिख सकता. वेरी रॉन्ग. इनफैक्ट दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच. इनफैक्ट ये किसी नॉलेज जो होता है ना, ये किसी एक बाप की जागीर नहीं होता. ये कोई भी बंदा किसी भी टाइम के ऊपर जो है उसको अगर पढ़ना शुरू कर दे और वाकई समझना चाहता हो तो उसे समझ लेगा. यस, टाइम लगता है, बट आप उस नॉलेज को हमेशा अडैप्ट कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी फील्ड के अंदर. सो मैंने आमतौर पे ज्यादा सक्सेसफुल लोग उन लोगों को पाया है जो डाइवर्स फील्ड्स के अंदर नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं. ठीक. रात दिन के वो जनाब से एक सॉफ्टवेयर है तो जी मैं तो सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, तो मैं तो डेटाबेस ही बनाऊंगा मैं, या वो जिसे कहते हैं ना कि जी वेब डेवलपमेंट चलिए मैं सिर्फ वेब डेवलपमेंट कर सकता हूँ जी, तो आगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता. ठीक है. सो इसमें वन हैज टू सी कि आप इन चीज़ों को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं. राइट. Opportunities are immense, right? Probably हम लोग उसको list down भी नहीं कर सकते जितनी opportunities exist कर रही हैं. It is a matter of time that we understand, we use our skills, and we gain basic skills of learning things independently and then utilizing that knowledge to build new systems.
राइट? दैट इज व्हाट इज नीडेड राइट नाउ. आई होप मैंने आपके दोनों सवालों का जवाब दे दिया. तीसरी चीज, Absolutely. Yes, sir. तीसरी चीज सर, इजाजत के साथ उस्मान साहब, आई होप यू वुड नॉट माइंड, आई वुड लाइक टू पिच इन समथिंग आप वाले जवाब के अंदर. मैंने इनफैक्ट अपनी जिंदगी के अंदर 2-3 चीजें सीखी हैं सर. कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें मैं फेल ना हुआ हूँ. ठीक, आई एम अ प्राउड फेलियर इनफैक्ट. ठीक, मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि सक्सेस विदाउट फेलियर आई हो. ठीक, आपको कोई एक सक्सेस हासिल करने के लिए मल्टीपल टाइम्स फेल होना पड़ता है. आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि मैं जिस बिजनेस को रन कर रहा हूँ, इसमें एक लड़ाई मेरी चल रही है अपने इदारे के साथ, जो लेजिस्लेटिव ली हमें कंट्रोल करता है. और मैं 4 साल में मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है, अपनी इंपोर्ट पॉलिसी जो है उसको दुरुस्त नहीं करवा पाया. ठीक, 4 साल में मुझे मेरा रॉ मटेरियल पाकिस्तान में इंपोर्ट करने के लिए इजाजत नहीं मिल रही. अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊं, बाहर जाके यही इंडस्ट्री कहीं पे और पे लगा लूं कि जी मैं वहां जाके मुझे तो इंपोर्ट की परमिशन बड़े आराम से मिल जाएगी, और जो मैं 4 साल से अपने मैन पावर का खर्चा उठा रहा हूँ, इंडस्ट्री का खर्चा उठा रहा हूँ, ये सब बच जाएगा. ठीक, बहुत आसान स्केप रूट है. दूसरा रास्ता वो है जिसको मैंने अडैप्ट किया. ठीक है, और मैं 4 साल से बर्दाश्त कर रहा हूँ. वो ये कि मैं बार बार इस दरवाजे को खटखटाता रहूंगा. ठीक, मे भी क्या मेरी हथौड़ी करंटली इतने जोर से नहीं लग रही कि ये ताला टूट जाए, बट मे भी किसी दिन ये ताला जरूर टूटेगा. जिस दिन टूटेगा उस दिन सिर्फ मेरे लिए नहीं, बाकियों के लिए भी भलाई होगी. ठीक, सो फेलियर, विदाउट फेलियर यू कैन नॉट हैव सक्सेस. आई एम रियली सॉरी अगर लोग ये समझते हैं कि जी मैं बगैर फेल हुए या बगैर डिप्रेशन का शिकार हुए अपने स्टार्टअप को चला लूंगा. इट्स एक्सट्रीमली रॉन्ग. There is no business where you do not get headaches, where things do not go wrong. ठीक, they are bound to go wrong. ठीक, वो मर्फीज लॉ था ना, if anything can go wrong, it would go wrong. ठीक है, plan for it. तो yes, it is going to go wrong. A good businessman, a good entrepreneur is a person who can see things coming that way, right? Who can in the right frame of mind decide कि मेरा एक्शन रैशनली क्या होना चाहिए. जज्बाती नहीं होनी चाहिए डिसीजन. ठीक है, इट हैज टू बी अ रैशनल डिसीजन, राइट? एंड देन बंदे को एक ऐसी क्वालिटी एग्जिस्ट करती है जो कि शायद अगर हो तो बहुत अच्छी बात होती है. हमारे बचपन में साथी जो थे और कईयों के पेरेंट्स, इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी कहते होते थे, यार बच्चा बड़ा ढीठ है. ठीक है, सो योर ability to persist in a certain condition, your ability to sustain that pressure, it really matters, right? And आप जितना ढीठ होंगे उतना बेहतर होगा. मेरे ख्याल में this is the right word, जिसको हम बड़े negatively use करते रहे, but this is something very positive, right? हमारी environment में, हमारे culture के अंदर हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस हद तक हो सके, ये नहीं कहते कि जनाब हर बंदा जो है वो हर चीज अचीव कर लेगा, नहीं. हम जिस चीज को शुरू करते हैं ना, उसे सिर्फ इस बुनियाद पे ना छोड़ दें कि नहीं यार ये एक दफा फेलियर हो गया, 2 दफा फेलियर हो गया, यार ये नहीं चलता यार. ठीक, 99% of businesses go down because of that. It's not because the business does not have the prospect. It does not mean कि potential खत्म हो गया था उस business के लिए. ये in fact it's you who gives up very soon. ठीक, so yes, तौसीफ साहब वाली बात को मद्देनजर रखते हुए, there has to be a margin. You have to draw a margin. If I mean you have to draw a line कि आपको कहां तक सस्टेन करना चाहिए और उसके बाद सस्टेन करना कितनी बेवकूफी है. Yes, that line also has to be there. ठीक है, it has to be a rational decision. ठीक है, it's nothing emotional, right? But sometimes emotional things also work out. It's not that they do not work out. Business opportunities, ये चीजें कभी खत्म नहीं होने वाली. ठीक, इसी environment में कुछ एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो कि इसी को यूटिलाइज करते हुए, इसी environment को यूटिलाइज करते हुए बहुत सारे पैसे बना जाएंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इसको शुरू करेंगे और कहेंगे नहीं यार बड़ी मुश्किलात मेरे अच्छे थे, कानूनी सही नहीं, तो मैं किस तरह कर सकना. ठीक, एंड दे गिव अप.
it's up to you when you want to give up. But please do remember, nothing comes for free. There's always a failure, multiple failures before that you hit success. Okay. Now we have mostly answered all the questions. We'll wrap up with Dr. Faisal, sir. If you have any advice, any message, any mistake that you want the young entrepreneurs who are listening to us to avoid in the future, please state, sir. This is very interesting question, in fact. हम लोग ना, we listen to everyone around us, and our decisions are molded by what people comment, and sometimes we need to understand and we need to realize कि दूसरे आपके पाँव में, आपके जूतों में खड़े होकर नहीं देख सकते कि आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं. They cannot understand कि आप किस चीज से गुजर रहे हैं. आपने अपनी एक जिंदगी एक अलग एनवायरनमेंट में गुजारी है. मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि कोई भी आइडिया डम नहीं होता, ठीक, चाहे उसे कितना ही डम लुकिंग बंदा सोच रहा हो, ठीक. Neither that person nor that idea, it's never too dumb, ठीक. There is always a side of that idea that can make you a millionaire, ठीक, or probably a billionaire. It's just a matter of how you see, how you perceive things. If you have an idea, please do not listen to others. ठीक, thoroughly उसको सोचें. अगर आपका दिल कहता है कि ये हो जाएगा, go ahead, attempt it. ठीक, and boundaries कि क्या चीज हो सकती है, क्या नहीं हो सकती. मैंने जिस दिन अपने बिजनेस के बारे में सोचा था ना, तो उस दिन मेरी जेब में 45 रुपए थे, ठीक. एंड आई वेंट टू माय फादर आफ्टर दैट एंड आई सेड, अबू मुझे बहुत भूख लगी है यार, एक बर्गर के लिए कुछ पैसे तो दे दे. माय फादर लाफ्ड एंड ही सेड, थोड़ी देर पहले तो तू एक जहाजों की फैक्ट्री खड़ी करने के बारे में बात कर रहा था. तो यस, ट्रू, कई दफा आपके पास ना तो रिसोर्सेज होती हैं, ना चीजें होती हैं जिससे आप काम शुरू करना चाहते हैं. बट अगर आपको ये पता लग जाए ना कि आपने काम क्या शुरू करना है, तो फिर रास्ते निकल आते हैं. ठीक, इट्स जस्ट लाइक इफ यू नो वेयर यू वांट टू गो, ठीक, तो से आई टुडे फिगर आउट कि यार मैंने कराची जाना है एंड मेरे पास कोई मींस नहीं है, कोई मोड नहीं है, तो और मैं यहाँ से पैदल भी चलना शुरू कर दूं, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता कराची की तरफ चलना शुरू कर दूंगा और पहुंचना शुरू कर दूंगा उसकी तरफ. बट नहीं यार, ये तो बहुत लंबा रास्ता है और मैं पहुंच सकूंगा और पहले ही गिव अप कर दूं, इट्स अप टू मी. अगर मैं चलना शुरू कर दूंगा तो बहुत मुमकिन है मुझे कोई बंदा जो है वो लिफ्ट दे दे. हो सकता है कि मैं दरमियान में मेरे पास कोई पैसे बन जाएं और मैं ट्रेन का टिकट लेके उसके ऊपर बैठ जाऊं. एंड इफ आई एम वेरी लकी, कोई वेंचर कैपिटलिस्ट मिल गया तो मैं जहाज का टिकट लेके कराची तो फौरन पहुंच जाऊंगा ना. ठीक, बट द थिंग इज यू नीड टू नो वेयर यू वांट टू गो बिफोर दैट यू अटेम्प्ट इट. So my advice to everyone is figure out what you want to do, regardless of how dumb it sounds. Figure out the modes and means that you require to reach that place. Go ahead, please attempt it. If you fail, remember, every failure is a step towards success. You learn from your failures and you grow into a person who doesn't make those mistakes again, right? Even if you make those mistakes, you'd still be successful, right? Absolutely. Don't let people drag you down, right? Do not listen to others when they give very negative remarks about what you're thinking or what you're capable of. You never know what you're capable of, not unless you attempt to. Okay. Dr. Seif, sir, would you like any message to give to the young entrepreneurs who are trying to work in technology? Any message या कोई गलती कर रहे हो या कोई इस तरह की बात? सर आपका म्यूट बटन ऑन है सर. Right. So just a brief comment. जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया है और बड़ा अच्छा उन्होंने एक चीज़ कही है कि मैं सिर्फ दो तीन छोटी छोटी बातें करूंगा. एक पहली बात ये है कि ये एक होता है ना कि बंदा एक हेल्पलेस
विक्टिम बन जाता है। कहता है मैंने तो ईमेल कर दी थी, जवाब नहीं आया, मैंने फ़ोन किया था उसने रिप्लाई नहीं किया, मैंने उसको अप्लाई किया था उसने मुझे ये नहीं किया। तो एक्चुअली अगर क्या करते हैं कि आप अपने आप को सिचुएशन में राइट प्लेस कर रहे होते हैं और बाकी लोगों पे ब्लेम प्लेस कर रहे होते हैं, ठीक है, जबकि आपको खुद अपनी सीट से निकल के जगह अगर आप ये काम खुद कर लें तो वो काम हो चुका होता है अभी तक, ठीक है। तो स्टॉप एक्टिंग लाइक अ मर्सीलेस विक्टिम, जिसको क्या है, जो बैठा हुआ अपनी सीट पे, वो बेचारा कॉल करता है, उससे कोई फोन नहीं उठाता तो उसका कुछ नहीं कर सकता। देन इफ यू कैन नॉट टेक द पेन ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द सीट, गेटिंग योर हैंड्स डर्टी, you need to fight for your dreams. Entrepreneurship का जो रास्ता है ना, वो you are going to fight for your dreams. If you have that will to fight for your dreams, you have to get out whatever it takes to get that job done. आप किसी को ब्लेम नहीं करोगे, अगर वो जॉब डन नहीं होगा तो उसका खाली एक बंदा ब्लेम वाला होगा, वो आप होंगे, और कोई नहीं है इसके अलावा। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही, because this is the path that you have chosen, this is the path that you have taken, you are responsible of getting that job done. If that job is not done, it's no one's else fault, it is your fault, and you have to amend it and rectify your strategy to make that thing possible. First, ये helplessness की एक feeling आती है ना, तो यार मैं कर नहीं सकता, हो नहीं सकता, ये इससे निकलना होगा। You need to act brave, face your failures. Second, ज़्यादा लोगों से डिस्कस ना करें अपने फेलियर्स को, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी एक सोसाइटी में एक कल्चर है ना, ये जो एंग्री बर्ड्स की गेम है जो बहुत मशहूर है, 51 टाइम्स उसने डिफरेंट गेम्स बनाई हैं उससे पहले, जो कि फेल हुई हैं, जो कि किसी खाते में नहीं गई, और फिर एंग्री बर्ड्स की गेम उसने बनाई है तो उसकी हिट हुई है, ठीक है। तो ये है बिलीव आपका अपने काम के ऊपर कि यस, योर वर्क विल इवेंचुअली एंड अप इन समथिंग गुड एंड विल ब्रिंग गुड टू यू एंड टू योर फैमिली। इस पे आपको बिलीव रखना है। और तीसरा की बात है कि आप सबकी सुने प्लीज, ठीक है ना, एक्सपीरियंस लोगों की सुने, अकम्पलिश लोगों की सुने, हर एक से आए, मतलब क्या होता है ना, मतलब ऐसे शोर में बैठा होता है तो अपने दोस्तों पे झाड़ने के लिए कि चलो मैं बड़ा कुछ कर रहा हूँ, कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ये इस तरह के टाइम ज़ाया ना करें। इफ यू रियली वांट टू सीक एडवाइस, सीक द एडवाइस फ्रॉम समवन हु इज एक्सपीरियंस्ड, जिसने ये रास्ते चल के देखे हों, आगे चल के अपने सीनियर से सीखें, उनसे ये चीज़ें आप डिस्कस करें, ठीक है। और प्लीज एक लास्ट वर्ड, एक चीज होती है बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड, वर्चुअल ओनरशिप, वर्चुअल ओनरशिप, इससे बचें। आपके पास काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप समझते हैं आपके पास है, और इनफैक्ट वो आपके पास नहीं है, जो आपके बैंक अकाउंट में आपके नाम पर एफबीआर से तस्दीक शुदा होके क्लीन होके पड़ा हुआ है, ओनली वो चीज आपकी है, ठीक है। द रेस्ट अराउंड यू इज ऑल फेक, ठीक है, इट्स इल्यूजन अराउंड यू, चाहे वो फिर सरकारी गाड़ी हो या सरकारी घर हो या वो सरकारी नौकर हो या जो मर्जी आप उसको नाम दें, ठीक है, या कंपनी का हो, दैट इज नॉट योर ओनरशिप, योर ओनरशिप इज ओनली व्हाट इज इन योर बैंक, ठीक है, एंड दैट्स इट। सो प्लीज हैव अ क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू डोंट हैव, don't live in illusion. So that's it from my side, please. Dr. Usman, sir, would you like to give any message to the technology entrepreneurs that are watching? Any mistake that you want to avoid them in that situation? हाँ, एक दो चीजें हैं। एक तो डॉक्टर फैसल, डॉक्टर तौसीफ ने जो बात की है ना, डिटाई बहुत जरूरी है, या उसको कमिटमेंट कह लें, ठीक है ना। अच्छा लफ्ज, तो बहुत जरूरी है। कमिटमेंट नहीं है ना तो you won't be able to follow through. मैंने खुद एक बार एक स्टार्टअप ट्राई किया था, I did not succeed. और अब मतलब in hindsight मुझे अंदाजा है कि I was not committed enough. फेलियर से काफी कुछ मैंने सीखा था। मैं और भी काफी स्टार्टअप्स में एज एन एम्प्लॉय भी मैंने काम किया मुख्तलिफ वक्तों पे। तो एक चीज जो मैंने देखी है ना, जो सक्सेसफुल अच्छे जो स्टार्टअप which made it someplace somewhere, अच्छा उन्होंने एक अच्छा कंपनी कल्चर मेंटेन किया हुआ था। और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि खासतौर पे स्टार्टअप में वो सिर्फ आपकी अकेले की कमिटमेंट काफी नहीं होती है। इट हेल्प्स अगर आपने जिन लोगों को हायर किया हुआ है वो भी आपके विजन, आपके गोल्स में उतना ही बिलीव कर, वो भी सिर्फ अगर पे चेक के लिए अगर ना आ रहे हो। उसके अब मुख्तलिफ उसमें मैं डिटेल्स में अब बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक अच्छी टीम को मेंटेन करना स्टार्टअप में वो बड़ा it's critical to the success or failure that comes from it.
ख़ास तौर पे हमारे पास आप अगर क्वालिफाइड यंग लोग अगर ख़ास तौर पे आप हायर करते हैं, तो क्वालिफाइड बंदा यूजुअली बहुत सारों का आगे गोल आफ्टर ग्रेजुएशन, वो आफ्टर फ्यू इयर्स बहुत सारों का गोल यही होता है, अच्छा यार मैं अब आगे जनाब बाहर पढ़ना है या कहीं आगे मैंने कुछ और पढ़ना है, वो कुछ अरसे के लिए आपके पास होते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टार्टअप्स में ये एक एट्रिशन इस तरीके से चल रही होती है। टैलेंटेड यंग लोग आते हैं, दे गेट स्टार्टेड, साल 2 साल 3 साल की है, एज भी 2-3 साल और बढ़ जाती है, फिर उनको पढ़ने का ख्याल होता है, पहले से शायद पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं आपके पास जॉब करके, एंड देन दे लीव। इसको आप मतलब किसी को आप पकड़ तो सकते नहीं है, लेकिन ये कि ये एक आना जाना एक वो लगा होता है। यू शुड ये खास तौर पे हमारे पास ना, दिस इज समथिंग यू शुड प्लान फॉर। वो डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस यूर इन, दैट डिपेंड्स। डॉक्यूमेंटेशन पे हमारे पास कोई ज्यादा नहीं बिलीव किया जाता है, लेकिन कीप थिंग्स डॉक्यूमेंटेड, ताकि जब एक बंदा निकलता है और अगला आता है उसकी रिप्लेसमेंट, तो वो ज्यादा इजीली जो है ना वो पिक करके उधर से काम कंटिन्यू कर सकें। ये मैंने कई बार देखा है कि एक प्रोडक्ट डेवलप होना शुरू हुई, बड़ी बड़ी अच्छी जो है ना वो डेवलपमेंट चल रही है, बड़ी प्रॉमिसिंग लग रही है, और फिर ग्रेजुअली क्या होता है कि वो जो कोर टीम जिससे शुरू हुआ था काम, वो ग्रेजुअली वो जाना शुरू होते हैं, एंड द डॉक्यूमेंटेशन हैज बीन डन, और अल्टीमेटली ये होता है कि वो जो नए लोग आते हैं, दे हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन, कि ये किसने क्या क्यों लिखा था। तो टू कीप थिंग्स सस्टेनेबल, डॉक्यूमेंटेशन जिसको बहुत जना अंडर वैल्यू हमारे पास किया जाता है। बाकी एक चीज और ये मेरा ख्याल है याद रखने की जरूरत है कि स्टार्टअप्स टिपिकली पे लेस देन लेट्स से देन मैनी, मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता हूँ, बट पे लेस देन मैनी मल्टीनेशनल्स। इसको फिर आप कहीं कॉम्पनसेट भी करते हैं। टिपिकली यूएस में जो व्यू है वो ये है कि people come to work for your startup for less than what they can get at an established company. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन that is then made up for by giving them equity or by letting them earn their way towards options, stock options in your company. ये चीज अभी मैंने बहुत कम कंपनियों में हमारे पास देखा है, और उससे ये होता है कि वो ओनरशिप आ जाती है आपके एम्प्लॉइज में भी। इट्स नॉट जस्ट वो सेठ के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो दे आर वर्किंग in what eventually can be partially their company as well. तो मेरे ख्याल ये भी एक चीज है जो कि अंडर यूज होती है, बाहर बहुत बड़ा टिपिकल सा टूल है, और मेरे ख्याल ये भी something to consider if things start getting interesting. बस I think that's all। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता क्योंकि टाइम काफी हो गया। Okay, thank you so much, all of you esteemed guys. Thank you, Dr. Faisal, for taking out time from your company and your life for coming for us. Thank you, Dr. Usman, for matching the timing from abroad and doing your iftari on while we were with us. Thank you so much. Thank you, Dr. Sasif, for teaching classes in the day and giving us time. Inshallah, zarur hame aur bhi questions honge. Or to all the entrepreneurs who are actually listening to them and want to ask more questions, you can post the questions in the comment section. We have connections with all of them. We would like them to answer and reply, and we will post them there. Thank you all for watching. Have a blessed Ramzan and stay safe, all of you. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you very much, Samad. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Professor. Thank you, Dr. Tawseef. Thank you, sir. It was a Thank you, pleasure. Dr. Usman, Dr. Faisal. Assalamu alaikum.